International Institute of Goat Management, IGMA, welcomes you to share experiences and deliberate on artificial insemination in goats and kids nursery as a profitable rural enterprise during and post-COVID-19. Webinar focus will be on artificial insemination and its extension, breeding management services, and kid nursery-based rural enterprises during and post-COVID-19. We are fortunate to have a diverse panel for a stimulating session. Among them is Dr. G.K. Singh, Vice Chancellor, Duwasu Mathura. Sir has successfully carried out the administrative responsibilities as Director across Training and Placement, Administration and Monitoring, and as Dean for College of Veterinary and Animal Sciences, Mathura. He currently holds office as Vice Chancellor, Duwasu Mathura. Also joining us is Dr. D.K. Sardana, Advisory Board, IGMA. Sir has been instrumental in path-breaking research at National Bureau of Animal Genetic Resources and National Dairy Research Institute, Karnal. Sir is currently associated in guiding role with Indigenous Livestock Society India and Animal Genetic Resources of India, and serves as advisory board in various pro-poor livestock-based development organizations. Also with us is Dr. D.V. Rangnekar, Chairman Board, IGMA. Sir has had extensive experience and has been instrumental in planning and extension of livestock-based program for sustainable livelihood development with BIF. Sir has provided services as advisory role for policy and extension frameworks across ICAR, NDDB, and DFID, among other prominent organizations. Also joining us is Dr. Mukul Anand, Assistant Professor in Department of Physiology, Duwasu Mathura. Sir has had extensive experience across research and development for artificial insemination technology. Sir has been instrumental in establishing state-of-the-art commercial goat semen production center and semen analytical and certification lab. Also with us is Mr. Sanjeev Kumar, Founder Advisor, The Goat Trust. Sir is an Ashoka Fellow. He has had extensive experience with development sector across grassroots implementation, academics, and policy advocacy. For the past decade, he has been promoting small livestock-based livelihoods. Among audience, we are fortunate to have participants from CSR, civil society organization, veterinarians, semen suppliers, and grassroots extension cadre. I would now brief on the planned proceedings of the webinar. We will be starting with a brief presentation to set the stage for further deliberation. Presentation will be followed by community experience sharing. Post this, panelists will share their views to take the discussion ahead. Post inter-panelist discussion, we will open the house for questions from the audience. I thank you all for being here. I would now request Dr. Ashish to move ahead with the presentation. Over to you, sir. Thank you, Rituraj. Thank you, Rituraj. And I welcome you all. I am Dr. Ashish Kumar. I have had the opportunity to contribute towards technology development of goat artificial insemination and lead AI extension program. Now I start with my presentation. मैं अपना प्रेजेंटेशन ये हिंदी में रखना चाहूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऑडियंस जो हिंदी बेल्ट के हैं, इसलिए इसे हिंदी में भी दे रहा हूँ. That's what I wanted to interrupt, because most of the extension functionaries and others are participating. So will they able to understand English or not? आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन गोट्स एंड गोट किड्स नर्सरी फॉर प्रॉफिटेबल रूरल एंटरप्राइज. हम अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही पुरानी तकनीक है, लेकिन इसे गोट में लाने में हमें कुछ समय लग गया ज़्यादा, और आज खुशी इस बात की है कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं. तो वाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है?
अभी पिछले 10 सालों से हम लोग इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो गांव में हमें हमेशा एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि भाई गोट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या जरूरत है। सॉरी। हम बकरी पालन को अगर देखें तो बकरी पालन मुख्यतः जो लैंडलेस फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें भी जो वोमेन्स हैं या महिलाएं होती हैं वो बकरी पालन में इन्वॉल्व होती हैं। उनके पास ये बकरियां लगभग 4 से 5 के स्मॉल हर्ट साइज में ये बकरी रखते हैं। इस स्मॉल हर्ट साइज के लिए इन्हें एक अच्छे नस्ल का बकरा रख पाना संभव नहीं है, जिसके कारण जब भी ब्रीडिंग का सीजन आता है तो ये लोकल जो ब्रीडिंग बक होते हैं, लोकल बक, उसके ऊपर इनको डिपेंड होना पड़ता है, जिसके कारण उसके कारण ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है उनकी गोट्स की वो काफ़ी कम हो जाती है, और इसलिए इनके यहाँ जो इनकम इस गोट से इनको होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो हमने पाया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ब्रीडिंग मैनेजमेंट के द्वारा इसमें जो किड्स हैं उनके बॉडी वेट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, साथ ही किडिंग रेट भी अच्छी मिलती है, और इसके द्वारा जो मेमना हमें मिलता है या किड्स मिलती है उसको किड नर्सरी के द्वारा हम एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं। और साथ में ये रोजगार, क्योंकि अभी हम कोविड-19 की महामारी से हैं, इसमें एक रोजगार का अच्छा साधन हो सकता है किड नर्सरी। अगर हम अभी मीट इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखें तो अभी करंट में हमारी पर गोट की मिल्क कैपेसिटी 3.7 kg की है पर गोट पर ईयर की। अगर हम अच्छे ब्रीडिंग मैनेजमेंट को हम अगर फॉलो करते हैं तो हम करीब करीब 14 kg तक हम इसे ले जा सकते हैं, जो कि अभी एनुअल प्रोडक्शन मीट की जो है हमारी 5 लाख टन की, उसे हम 19 लाख टन तक का अचीव कर सकते हैं, जिससे कि लगभग 1 लाख करोड़ का लाइव स्टॉक इंडस्ट्री ये यहाँ से जनरेट हो सकता है। और यदि हम मिल्क में देखते हैं तो अभी करंट कैपेसिटी हमारी 120 ग्राम की है पर गोट पर डे की। इसमें भी अगर हम अच्छे से ब्रीडिंग मैनेजमेंट को फॉलो करें तो इसे 250 ग्राम तक ले जा सकते हैं, जो कि अभी एनुअल मिल्क प्रोडक्शन हमारा 6 मिलियन टन का है, उसे हम अचीव करके 12 मिलियन टन तक ले जा सकते हैं, और यहाँ से भी 2 लाख करोड़ की मिल्क इंडस्ट्री से हम यहाँ पर मार्केट जनरेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल यूज़ है, इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी ये मुख्यतः 3 स्ट्रेटजी हमारी, जैसे कि एक लोकल ब्रीड है, जो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड है उसका कंजर्वेशन करना, जो खराब ब्रीड है उसको हटाना, और इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। इस आधार पे हमने इसे 5 स्टेप में इस पर हम गांव लेवल पे लेके जाते हैं। इसमें से सबसे पहला है कि बेस्ट क्वालिटी गोट का सिलेक्शन करना। इसमें हम गांव लेवल पर एक अच्छी क्वालिटी की बकरी का चयन करते हैं, जिसका आधार रखा जाता है कि उसमें मिल्क की कैपेसिटी देखी जाती है। जैसे 800 to 900 ml अगर बकरी एक दिन में दे रही है, वो मतलब ट्विनिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है या किडिंग इंटरवल कम है, उसको हम एक अच्छी अच्छी गोट की श्रेणी में मानते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो मेमने पैदा होते हैं उसको हम किड नर्सरी के द्वारा उसका पालन करते हैं। उसके बाद जो बकरियां किडिंग के बाद 90 डेज के अंदर अगर वो फिर से हीट साइकिल में नहीं आती हैं तो उनका हम इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट उसका हम करते हैं। उसका अलग प्रोटोकॉल है, उसमें हर्बल आता है और आयुर्वेदिक और हार्मोनल आते हैं, क्योंकि एक अच्छे ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए बकरियों की किडिंग जो है 2 साल में लगभग 3 बार होनी चाहिए। और कैस्ट्रेशन के द्वारा जो भी हमारे इंफीरियर क्वालिटी के जो बक्स हैं, इस प्रोग्राम के द्वारा उनको हमें कैस्ट्रेट किया जाता है। एक अच्छे ब्रीडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए और उसे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो बेस्ट क्वालिटी सीमेन की और दूसरा ट्रेनिंग टेक्निक की। तो अभी ये फोटोग्राफ्स ये दुवासु मथुरा सीमेन लैब का है, जहाँ पर ये डॉक्टर मुकुल आनंद सर के देखरेख में ये यहाँ सीमेंट प्रोसेसिंग होती है। उससे कुछ स्टेप्स हमने दिखाए सीमेंट प्रोसेसिंग के, जिसमें से कि जैसे सीमेंट कलेक्शन के लिए आर्टिफिशियल वेजाइनल मेथड से हम ये सीमेंट कलेक्शन होता है, और सीमेंट कलेक्शन के बाद इसको लैब में हम फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि उसके वॉल्यूम को देखा जाता है, उसके कलर को देखा जाता है, और उसकी मास मोटिलिटी को देखी जाती है। उसके बाद सीमेंट को फिर डाइल्यूट करते हैं ट्रिस एग योक एक्सटेंडर से, और उसके बाद उसको पैकिंग और सीलिंग करके उसको फ्रिज किया जाता है और सीमेंट को स्टोर किया जाता है। उसके बाद 24 आवर के बाद हम उसको उसकी मास पोस्ट थॉइंग मोटिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि 60% से ऊपर जो मोटिलिटी होती है उसी को हम एआई के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारा प्रेजेंस जो है 6 स्टेट में है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में,
और अभी तक हम लोगों ने 15,000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोगों ने कर रखा है। और इसमें लगभग हमारे जो कैडर हैं फील्ड लेवल पे 750 कैडर अभी वर्क कर रहे हैं हर गांव स्तर पे। जिन अभी जो हमारे यहाँ गोट में कंसेप्शन रेट आ रहा है वो 57% तक कंसेप्शन रेट हम लोगों ने अभी अचीव किया है। Yes, Dr. Ashish, there was Yes. a request flagged that we give description in English. Okay, okay, sir. Now, we come on community awareness. ये पार्ट जो कम्युनिटी अवेयरनेस का है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस ब्रीडिंग मैनेजमेंट और ब्रीडिंग प्रोग्राम का, क्योंकि इसमें ये डिफरेंट टूल्स के द्वारा हम विलेज लेवल पर इसको विलेज लेवल पर इसे हम अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे कि गोट्स ब्रीडिंग प्रोग्राम से क्या क्या फायदा हो सकता है कम्युनिटी को, ये हम बताते हैं। इसमें वीडियो शो हो गया, विलेज रैली हो गई, वॉल पेंटिंग हो गई, पम्पलेट हो गया और विलेज मीटिंग, इन सब टूल्स के द्वारा हम ये कम्युनिटी अवेयरनेस का काम करते हैं। एआई एक्सटेंशन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो विलेज लेवल पर अगर हम देखें तो हम पशु सखी और एआई वर्कर ये दोनों मिलकर साथ में इस काम को विलेज लेवल तक लेकर के जाते हैं। इसमें इनको ये ब्रीडिंग स्ट्रेटजी जो 5 पिलर हमने बताया, बेस्ट क्वालिटी गोट, किड नर्सरी, कैस्ट्रेशन, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड गोट एआई, इस पर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि सर्टिफाइड ये ट्रेनिंग हमारा कोर्स चलता है दुबासू मथुरा के साथ। तो इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक विलेज में ये पशु सखी होती है, तो 10 पशु सखी पर एक एआई वर्कर जो है वो कार्य करता है। और इस तरह हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो ये टेक्निक है इसको हम विलेज लेवल तक लेकर के जाते हैं। और इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद इसका प्रॉपर फॉलोअप भी इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि हम फर्स्ट फॉलोअप जो है 21 डेज पे करते हैं फार्मर के यहाँ, सेकेंड फॉलोअप हम 75 डेज पे करते हैं और थर्ड फॉलोअप 150 डेज पे करते हैं। 75 डेज पे जो फॉलोअप होता है उसमें पशु सखी है किसान के डोर टू डोर जाती है और वहाँ उसको बकरी में जो भी कैसा फीडिंग मैनेजमेंट उसको रखना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एंड 150 डेज पे जो फॉलोअप होता है तो उसमें जो किड्स बॉर्न होते हैं उनका फोटोग्राफ्स लिया जाता है, बॉडी वेट लिया जाता है और पोस्ट किडिंग जो मैनेजमेंट है उसके बारे में उनको बताया जाता है। हम अभी जैसे कोविड महामारी के समय यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस समय काफ़ी रोजगार की समस्या है, तो किस प्रकार ये एक किड नर्सरी के द्वारा हम रोजगार दे सकें, क्योंकि किड नर्सरी में अगर हम देखें तो इसको काफ़ी ही कम खर्च में और काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट पे शुरू किया जा सकता है और इसमें हमें कम जगह की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखें तो 25 से 30 हज़ार रुपये में 10 बकरी से किड नर्सरी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये एक अच्छा रोजगार का साधन युवाओं के लिए और गांव स्तर पे बन सकता है। किड नर्सरी के द्वारा हम देखेंगे तो किड नर्सरी से एक तो बकरियों से हमें अच्छा न्यूट्रिशनस मिल्क भी प्राप्त होता है, जो कि बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए हम देखें तो ये एक अच्छा औषधीय गुण इसमें अच्छी होती हैं। और बकरियां जो होती हैं एटीएम की तरह कार्य करती हैं, मतलब अगर हम चाहें तो कभी भी इसको बेच करके और इससे पैसे हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने विदाउट एआई और एआई बॉन्ड किट्स को कंपेयर किया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एआई बॉन्ड किट है उसमें 1 kg का चेंज आ रहा है और 3 मंथ के में अगर हम देखें कि जो विनिंग एज होता है उसमें 4 kg का लगभग चेंज है एआई बॉन्ड किट पे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एआई बॉन्ड किट है अगर उसका यूज़ हम किड नर्सरी के लिए हम करते हैं तो लगभग 10 किड को रखने से एक 50,000 रुपये पर ब्रीडिंग साइकिल के हिसाब से एक इनकम जनरेट हो सकता है एक हाउस होल्ड को। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि एक किड नर्सरी में लगभग हम अगर चाहें तो 10 मिलियन तक का हम रोजगार हम पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी तक का जो फील्ड एक्सपीरियंस रहा है ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और किड नर्सरी को लेकर के, वो आपके साथ शेयर किया मैंने। धन्यवाद। और आगे हम एक कम्युनिटी जो कम्युनिटी में एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से।
मेरा नाम हिलाल अहमद है और मैं अबरार नगर लखनऊ में रहता हूँ। मैंने छत पर 8 बकरियां पाल रखी हैं, जिसमें से गोट ट्रस्ट ऑफ लखनऊ से हमने एआई करवाया था, जिसमें हमारा ये बच्चा सिंगल पैदा हुआ था। ये पैदा ही होते हुए वज़न अच्छा था इसका, चूँकि सिंगल था इस वजह से और भी अच्छा था। बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। अभी ये 10 महीने का है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 साल का है। हम संतुष्ट हैं और ये उम्मीद करते हैं कि गोट ट्रस्ट ऑफ लखनऊ और अच्छा काम करेगा, जिससे किसानों का और बकरी पालकों का लाभ हो। मोहम्मद इलियास अंसारी, मैं अमरे गाँव का रहने वाला हूँ। मैं पहले मेरी बकरी जब गर्म होती थी तो मैं करवा लेता था, तो उससे मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो मैं रसूलपुर सादाब जाता हूँ। वहाँ पे जो है बच्चे से मशीन से भी डलवा लेते हैं, तो बच्चे हमें लगते हैं अच्छे भी हैं और मुझे ये भी लगता है कि दूध भी बढ़ा, बच्चे का वज़न भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं जाता हूँ। अरुण अली, संतपुरम तखरोई में रहता हूँ। मैं बकरी पालन का काम करता हूँ 10-12 साल से। और पहले देसी बकरियाँ, मतलब मोहल्ला टोला में जो देसी बकरी रहते थे उससे बकरी हमारी लगती थी तो बच्चा सही नहीं देते थे। अब हम रसूलपुर बकरी फार्म में जाते हैं और भी लोगों को बताते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ के जब दवा रखी जाती है तो उससे बच्चे अच्छे और तंदुरुस्त होते हैं और हमको लाभ होता है। 10-12 साल से मैं बकरी पालन का काम करता हूँ, बहुत लाभ होता है और बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, अच्छे होते हैं। और लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे साथ चलिए, या मैं बताएं आप रसूलपुर चले जाओ बकरी फार्म से, वहाँ दवा धरवा लाओ, आपकी बकरी खूब उन्नति होगी, बच्चे भी अच्छे तंदुरुस्त होंगे। Now I would like to request Mr. शिवाजी कि अपना कम्युनिटी एक्सपीरियंस को शेयर करें। शिवाजी फ्रॉम महाराष्ट्र। हेलो, हाँ शिवाजी, नमस्कार। मेरा नाम वीडियो ऑन कीजिए शिवाजी, वीडियो। मेरा नाम शिवाजी है। मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद से हूँ और मेरे यहाँ कम्युनिटी लाइफ स्टॉक बिजनेस सेंटर 13 है। उसी में 145 एआई वर्कर हैं, जो 13 CLBC कम्युनिटी लाइफ स्टॉक बिजनेस सेंटर में एक क्षेत्र में हम अभी तक 7,500 एआई किए हुए हैं और उसी में 4,300 बकरियों ने अभी तक, उसमें 7,800 बच्चे पैदा हुए हैं, दिए हैं। वो बहुत काफी अच्छे और उसका वजन ज्यादा है। और इधर के जो पशु सखी ताई और बकरी पालक ताई है, उनको ये बहुत अच्छा लगा और उसकी डिमांड अभी बढ़ रही है। हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और जो बच्चे पैदा हुए हैं उसी में के 6,500 बकरी और बच्चे हम पशु बाजार के माध्यम से बेचे हैं। और इधर एआई का ज्यादा कारोबार चल रहा है और हम उसी में ज्यादा से ज्यादा एआई करने के लिए, लार्ज स्केलिंग पर एआई करने के लिए कटिबद्ध है। हम इधर 13 CLBC क्षेत्र में एआई के लिए काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं। मैं यहाँ हमारे जो इधर के CLBC के अंदर प्रक्षेत्र में जो एआई वर्कर है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तात्या साहेब गोपनी। शिवाजी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, इधर ऊपर से ही है सर, इधर से तो ऑन दिख रहा है।
इधर से ऑन है सर। शिवाजी तो दिखने चाहिए, शिवाजी नहीं दिखे तो कैसे काम चलेगा? ऋतराज जी asking to share no topic वीडियो शिवाजी की तरफ से वीडियो ऑन है, मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल ग्लिच है सर। अभी हम कम्युनिटी शेयरिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ओके। हाँ शिवाजी आप आगे बताइए। बताइए। हाँ, तो हमारे इधर अभी जो एआई वर्कर है, वो एआई वर्कर तात्या साहब गोपने, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो एआई करते हैं। तात्या साहब गोपने। नमस्कार, हेलो, बताइए। माझं नाव तात्यासाहेब गोपने, गाव सोनेगाव, तालुका जिल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। मी CLBC मध्ये उमेद अभियानाच्या माध्यमातून CLBC काम पाहतो। गेल्या 2 वर्षापासून मी AI काम करतो। AI करण्याच्या अगोदर शेळी पालकांच्या कल्पामध्ये जी बकरी होते ते खराब बकरी, त्यांचं व्यवस्थापन व्यवस्थित नसल्यामुळे त्यांच्यापासून होणारी जी पिल्लं होती ती कमी वजनाची, कमजोर होती। पण ज्या वेळेला AI सुरू केलं, त्या AI केल्यापासूनची जन्मलेली पिल्लं दिसायला छान दिसत होती, चमकदार दिसायला लागली आणि वजनात वाढ दिसायला लागली। ह्याच्यामुळे शेळी पालकांमध्ये याविषयी उत्सुकता आणि जागरूकता निर्माण झाली आणि बदियाकरण कॅस्ट्रेशन जे बदियाकरण जी कमी म्हणजे खराब नसल्याची जी बकरी आहेत अशा बकऱ्यांचं बदियाकरण केलं जातं आणि ज्या शेळ्या कमी म्हणजे वेळेत ही गरमीमुळे येत नाहीत अशा शेळ्यांना हर्बल उपचार करून त्यांना हिटवर आणलं जातं। धन्यवाद। इनको एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, पूछ सकते हैं। हाँ सर। आता तुम्ही जे सांगत होता AI बद्दल, शेळी पालकांनी AI मान्य केलं का काही त्यांना पटवून द्यावं लागलं AIचा उपयोग? पटवून द्यावं लागलं नाही, कारण त्यांच्या पिल्ल्यांमध्ये वाढ, पिल्ले दिसायला चांगले दिसायला लागले आणि AI मुळे वजनात त्यांच्या वाढ दिसून लागली ना। ज्या शेळीला AI केलं नाही अशी पिल्ले आणि AI केलेले पिल्ले, या दोन्ही पिल्ल्यांमधला जो वजनाचा फरक त्यांना दिसून आल्यामुळं त्यांना AI केलेलं योग्य वाटायला लागलं। म्हणजे AI केलेले पिल्ले चांगले दिसतात। ओके, थैंक यू तात्या जी। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संजू पटारी जी को कि अपना कम्युनिटी एक्सपीरियंस शेयर करें। संजू पटारी जी जो कि अभी त्रिपुरा में हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजू पटारी, मैं त्रिपुरा से हूँ। मैं गॉट्रस के साथ त्रिपुरा रॉयल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे 200 किड नर्सरी किए और 5 लाख रुपए संचय किया। 3 महीने का बच्चा 15,000 रुपए में खरीदता हूँ और 3-4 महीना पालता हूँ। पालने में खर्च 1,000 रुपये आता है और टोटल खर्च 2,500 रुपया। तो हम लोग बच्चा सेल करता हूँ 5,000 रुपया, हम लोग 5,000 रुपये सेल करता हूँ। तो हम लोग को इनकम आता है एक बच्चा में 2,500 रुपया। अभी गांव में अपन नदी ने किड नर्सरी करके बहुत सफलता किया। मैं बोलना चाहता हूँ अपन नदी को कुछ बोलने के लिए। नमस्कार। ये AI सर्विस देते हैं सर? किड नर्सरी है, किड नर्सरी। নমস্কার, আমার নাম অপর্ণা দে, আমার গ্রামের নাম পূর্ব জলেফা, আমার দলের নাম সৃষ্টি মহিলা দল, আমার ভিউর নাম গীতাঞ্জলি ভিউ। আমি সাতচা নার্সিং ব্লকে ত্রিপুরা আজীবিকা মিশনে পশু সখী হিসাবে কাজ করি।
2019-এর মার্চ মাসে আমি কিড নার্সারি শুরু করি। তখন আমার একটা ছাগলের বাচ্চা ছিল। এর সঙ্গে আমি আরো 5টা ছাগলের বাচ্চা কিনি। এতে আমার খরচ হয় 10,000 টাকা। এই ছাগলের বাচ্চাগুলোকে পালন করার জন্য আমার ঘর বানাতে খরচ হয় 4,500 টাকা। ছাগলগুলো খাবার বাবদ আমার খরচ হয় 4,500 টাকা। ওষুধ, পশুচাট, মশলা প্লাস অন্যান্যর জন্য খরচ হয় আমার 1,000 টাকা। এভাবে 3 মাস 15 দিন ছাগলগুলোকে পালন করার পর আমি সবগুলো ছাগলকে একসঙ্গে বিক্রি করে দিই। এতে আমার আয় হয় 36,500 টাকা। এর থেকে আমার খরচ হয় 19,000 টাকা আর লাভ হয় 16,500 টাকা। সবাইকে নমস্কার। धन्यवाद दीदी। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जीके सिंह जी से कि अपना इस टॉपिक पे एक्सपीरियंस शेयर करें हमारी ऑडियंस के लिए। जीके सिंह जी आपकी तरफ सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, आज के कार्यक्रम में शामिल प्रोफेसर रागनेकर जी, डॉक्टर डी.के. सदाना साहब, डॉक्टर मुकुल, संजीव जी, डॉक्टर आशीष, गोट ट्रस्ट से जुड़े और सभी प्रतिनिधि और सभी अटेंडीज। मेरा नाम भूल गए आप? सबसे पहले आपका ही नाम लिया सर, रागनेकर जी, डॉक्टर रागनेकर जी। आपको कैसे भूल सकते हैं? मैं आपको सुनाई दे रहा हूं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये अच्छी बात है, मुझे आज पैनलिस्ट के रूप में रखा गया है। हालांकि मेरा बकरी पालन का अनुभव बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो मुझे व्यावहारिक अनुभव हुए हैं बकरी पालन के क्षेत्र में, उनमें से कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज का जो विषय है विशेष, बकरी पालन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, और वो भी पोस्ट कोविड सिनेरियो जो है उसमें क्या होना चाहिए। बकरी को पहले भी गरीब की गाय कहते थे, और मुझे लगता है आज के परिवेश में ये कथन और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है जब हम कोविड के सिनेरियो की बात करते हैं। मैं पीछे एक वेब सेमिनार में ही हिस्सा ले रहा था जहां ये बात आई अर्थव्यवस्था की कोविड के दौरान। उसमें किसी विशेषज्ञ ने बताया कि भारत की प्रतिदिन की जीडीपी 65,000 करोड़ रुपए है, और वर्तमान परिस्थिति में जब कोविड की समस्या चल रही है, ऐसे में प्रतिदिन 45,000 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण समस्या को सुलझाना, सुधारना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देश के सामने है। और जब हम देश में विकास की बात करते हैं, तमाम तरह के विकास देश में हुए, ग्रामीण विकास की बात होती तो रही हर स्तर पर, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण विकास के लिए बहुत कुछ कम किया जा सका, बहुत बातें नहीं हो सकी। और ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं, ग्रामीण सिनेरियो देखें भारत का, तो आज के दिन भी लगभग 66% लोग गांवों में रह रहे हैं, जिनमें 80% से अधिक लोग, एक आंकड़ा तो ये कहता है कि लगभग 98% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, यानी कि वो स्मॉल, मार्जिनल या लैंडलेस में आते हैं। और हमारा ये जो बकरी पालन का कार्यक्रम है, डेटा ये भी कहता है कि 75% से अधिक का बकरी पालन ऐसे लोगों के हाथों में है जो 98% पॉपुलेशन रूरल एरिया की है। इसका मतलब अगर हम बकरी पालन में कोई सुधार या कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं
तो ये ग्राम्य विकास की एक बड़ी विधा के रूप में गांव का जो रिसोर्स पुअर है, संसाधन विहीन है, उसकी बड़ी जनसंख्या तक आसानी से पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। हर फोरम पर, हर पटल पर यह बात की जाती है कि बकरी बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है। बावजूद इसके जितने बकरी पालक हैं उनकी आय अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो बकरी पालन का कार्यक्रम है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है आज के दिन, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन का एक्सटेंसिव सिस्टम, यानी कि जीरो बजट, बिना किसी खर्च के बकरी पालन जो हो रहा है, उस पर ही आधारित है हमारा बकरी पालन, अपनी आय के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, तमाम सारी बातों के लिए। तो जब तक ये समस्या चलती रहेगी, बकरी पालन का प्रोडक्शन सिस्टम एक्सटेंसिव सिस्टम ही चलता रहेगा, इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक इससे होने वाले लाभ का अंश कम ही बना रहेगा और हमारे बकरी पालक को बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हमारा एक्सटेंसिव सिस्टम है? हमारा फ्लॉक सारा एक साथ रह रहा है, छोटे छोटे फ्लॉक हैं, हर्ड हैं लोगों के पास। मेरा जहां तक अनुभव है, लोग अच्छे बकरे रखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पालन पर अलग से व्यय होना है, उनके पालन पोषण की अलग से समस्याएं हैं। तो जो भी उनके पास बकरे हैं, बकरियां हैं, एक साथ रखे जाते हैं, उन्हीं से प्रजनन होता है और लगातार उनकी क्षमता आगे घटती जाती है बजाय बढ़ने के। दूसरे सबसे बड़ी जो समस्या आती है नेगेटिव सिलेक्शन। जो भी उनमें अच्छे बकरे बकरियां पैदा होते हैं, वो कम आयु में ही उनकी अपनी रोज की आवश्यकता के अनुसार मजबूरी में बेचने पड़ते हैं। तो अच्छे पशु उनके पास, अच्छे बकरे बकरियां बचते नहीं जिनसे उस बात को वो और आगे बढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम सबके समक्ष आती है, जो इसके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सदाना साहब हैं, रागनेकर साहब हैं, आप लोग विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे कि प्रजनन को हम ये कहें कि प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ की जो स्थिति है बकरे से, उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। उसके बढ़ाने के लिए हालांकि बहुत सारे कारक हैं, लेकिन प्रमुख कारक मैं जो समझता हूं, क्योंकि बकरी की जो भी जनसंख्या है उसमें 70% से अधिक बकरियां, जिनको हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, कोई ब्रीड नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे बेकार किस्म की बकरियां हैं, वो है। अगर वो हैं तो उनका अपग्रेडेशन, उनका इवेल्युएशन किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो आज की प्रोडक्शन सिस्टम चल रही है, उसके माध्यम से कोई भी ऐसे आसार नजर नहीं आते कि जिससे उसमें सुधार हो सके। ब्रीडिंग को सुधारना है, अच्छे बक्स की सप्लाई करना, अच्छे बकरों की सप्लाई की जानी है। अच्छे बकरे आए कहां से? बक मदर फार्म्स को एस्टेब्लिश करना है। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंतर्गत तो आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सबसे पहले इस प्रोडक्शन सिस्टम को कन्वर्ट करने की जरूरत है कि उसको सेमी इंटेंसिव या इंटेंसिव सिस्टम में ले जाने के प्रयास किए जाए। ब्रीडिंग सिस्टम एक पॉलिसी के तहत वहां लागू किया जाए कि किस क्षेत्र में किस ब्रीड को जोर देना है, किस प्रकार की ब्रीडिंग पॉलिसी वहां लागू की जानी है, उसको किया जाना है। और बकरों के अभाव में अगर प्रोग्राम्ड ब्रीडिंग पॉलिसी चलाना है तो निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक उसका बहुत ही सशक्त साधन है। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि आज के दिन भी मैं देखता हूं पूरे देश में, जब दृष्टि डालता हूं तो मुझे हर जगह अच्छे नस्ल के बकरों की, अच्छे क्षमता वाले बकरों की बहुत कमी नजर आती है। इसी उद्देश्य से हमने भी अपने विश्वविद्यालय में एक प्रयास किया है अच्छे बकरों के उत्पादन का, अच्छा सीमन प्रोडक्शन का। लेकिन इसके लिए हम जैसे संस्थान, प्रदेश सरकारें, एनजीओज, इन सब को सामने आना होगा, सबको सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा, ताकि हम उस रिसोर्स पुअर, संसाधन विहीन बकरी पालक तक पहुंच सकें और विकास की ये लौ उन तक पहुंचा सकें। मुझे खुशी हुई ये जानकर
कि देश के ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां सरकारी तौर पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अपनाया गया है और पूरे प्रदेश में उसको एक नीति के रूप में लागू किया। लेकिन दुख उस बात का भी है कि ऐसे भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहां आज के दिन बकरी को लेकर कोई कार्यक्रम ही नहीं है। गाय के लिए, भैंस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम है, लेकिन बकरी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। तो ये प्रदेश सरकारें जब तक सोचेंगी, सामने आएंगी, कुछ करेंगी, तब तक हम संस्थानों को और ऐसे एनजीओज को या और सारी संस्थाओं को आगे आकर इसमें काम करना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि गोट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कार्य किया है इस क्षेत्र में। पूरे देश में उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ले जाने का कार्य किया है, और इसीलिए जो हम केंद्र अपना स्थापित कर रहे हैं, हम आगे चलकर इस ट्रस्ट के साथ जुड़कर अपने आप को प्रदेश में, देश में हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो एक प्रयास कर रहे हैं नस्ल सुधार का, बकरियों की क्षमता बढ़ाने का, अच्छा सीमन उत्पादन के माध्यम से, हमारी लेबोरेटरी के बारे में डॉक्टर मुकुल अभी और डिटेल में बताएंगे कि हम किस स्थान पर हैं इस वक्त। हम एक अच्छा तंत्र खड़ा कर सकते हैं इस तरह से पूरे देश में, और बकरी के सुधार में एक बढ़िया महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अभी हमने जो बातें सुनी, जो बकरी पालक हैं उन सभी ने इस बात को अनइक्विवोकली कहा कि हमने जब एआई लागू किया, कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया, तो उनकी आय में वृद्धि हुई, बकरे ज्यादा, उसमें बॉडी वेट गेन ज्यादा अच्छा है। तो निश्चित रूप से ये तो सच है, इसमें कोई दो ओपिनियन ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक अच्छा और सशक्त माध्यम है, इसको अपनाया जाना चाहिए। तो मैं अपने इस मत के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जीके सिंह सर, आपके होलिस्टिक अप्रोच के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम के कैसे कोविड ने इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्री के अफेक्ट किया है, कैसे बकरी पालक में एक्सटेंसिव सिस्टम है, इंटेंसिव नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो ये ग्रोथ कैसे आएगी। जो अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं वो पहले सेल हो जाती हैं, तो जो जेनेटिक वर्थ है वो डिग्रेड होता है और आगे प्रोपोगेट नहीं हो पाता। जो नेशनल हमारी डिमांड है बेस्ट सीमन की, उसको हम बक के थ्रू नहीं पहुंचा सकते, हमें एआई के थ्रू ही जाना है, जो कि एक फास्टर सोल्यूशन है। और अंततः इम्पोर्टेंस सारे स्टेक होल्डर के कोलैबोरेशन का, ताकि इसको हम नेशनल लेवल पे एक एक्सटेंशन प्रोग्राम के रूप में देख सकें। धन्यवाद सर आपकी इंसाइट के लिए। अब मैं डॉक्टर डीके सदाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना व्यू इस टॉपिक पे शेयर करें। Thank you so much, Ashish. Thank you, everybody. My presentation definitely is not for the panelists, please. It's for the participants. And fortunately, we have almost 100 participants here. The topic that was given to me was with a question. I think I am visible also. My slides are visible. Yes, sir. Yes. Right. The question was, why at all we need selection of good quality goats? I am trying to keep myself just to that and saying that, trying to get an answer to this question. क्यों जरूरी है? और भाई और बहनों, बच्चों, मेरे प्रेजेंटेशन ज़्यादा हिंदी में रहेगी, स्लाइड्स इंग्लिश में हैं। कहीं किसी को इंग्लिश में और बात हो तो बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे उम्मीद है लोग बात, हमारे पार्टिसिपेंट्स हिंदी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें, व्हाई वी नीड सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी गोट्स। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें 8 स्टेप्स लेने होंगे, कम से कम 7-8 स्टेप्स हैं। पहला, यूजेस और इम्पोर्टेंस। यूजेस तो आशीष जी ने और डॉक्टर सिंह साहब ने पूरी तरह से हमें बता दिए। यूजेस हम आप सभी जानते हैं, इसके दूध और खाद के अलावा और मीट और हाइड्स के अलावा भी हमें कुछ मिलता है, देखेंगे। लेकिन ये जो भी है इसकी, उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस
कुछ चीजें सामने आई हैं। हम जरा सवाल भी देखेंगे क्या क्या चाहिए बकरी पालन में, और जो खान पान देना है इसके अलावा पूरा सिस्टम चाहिए, उसकी बात होगी। कुछ थोड़ा सा हम जीन्स और जेनेटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि जीन्स को हम यूं कह सकते हैं कि ये बकरी की अंदरूनी ताकत है। इम्प्रूवमेंट तभी उठेगी, और इन बातों से हमारे प्रश्न का उत्तर कि हम क्यों सिलेक्शन करें। और आखिर में मैं थोड़ा सा एआई के बारे में भी कहना चाहूँगा। सबसे पहला स्टेप यूजेस। हम सभी जानते हैं इनके यूजेस, कोई नई बात नहीं है सभी के लिए। कई जगह पे ड्राफ्ट पावर एज ए पैक एनिमल भी यूज होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस शायद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है। ये बता दिया कि जो गरीब हमारे सीमांत किसान हैं उनके बहुत फायदे का है, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना खर्च ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एक ऐसा माध्यम है कि वो कम खर्चे से भी अपना काम चलाएं। और बकरी में जाके पौधों से कुछ खा के अपना गुजारा कर लेती है। लेकिन और देखिए अब आप, दूध जो इसका मेडिसिनल पावर वाला है, कम उपयोगी नहीं, बहुत बड़ी बात है। प्लेटलेट काउंट को इसी ने बहुत सारा सुधार किया था। चीज जो बनता है गोट के दूध से, वो अपने आप में इंडिया में रिलेटिवली अभी कम है, लेकिन दुनिया में, और अब इंडिया में जरा सा शुरू होने लगा है। और अब तो सोप भी बनता है इससे, ब्यूटी सोप्स भी अब बनाए जा रहे हैं इसी से। और लोकल न्यूट्रिशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दूर दराज इलाके में एक बकरी है तो कम से कम घर में दूध तो आ रहा है बच्चों के लिए। और जब कभी पैसे की जरूरत है, 4-5 बकरियां हैं तो एक बकरी की सेल करके, इसीलिए इसको बैंक ऑन हूफ कह देते हैं। लेकिन देखिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, बकरियों पे लोग डिपेंड करते हैं और बकरियों से उनको पूरा विश्वास है। ये बकरी की इम्पोर्टेंस की बहुत बड़ी बात है। मैंने यूजर्स बताए थे, यूजर्स हमें और जगह से भी मिल जाते हैं, और जैसे गाय से मिलेंगे, भैंस से मिलेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंस जो आ रही है ये बकरी की खास है। और अब जो इसका डिपेंडेंस का एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमें गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो बहन मिली, ये बकरी ही इनके पास थी जिससे उनका गुजारा चलता था। और मेरे ख्याल है 15-16 साल पहले अकोला इलाका में इन भाई से बातचीत हुई, ये उनकी प्रॉपर्टी बस ये बकरी है और उनका गुजारा चलता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम सोचें कि हाँ, लोग डिपेंड करते हैं और इस पे रिलायबिलिटी, एक बकरी रख के उनका गुजारा चल रहा है, मीन्स लोगों का पूरा विश्वास है। अभी जो हम देखना चाह रहे हैं वो है प्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि प्रोडक्शन में दूध और मीट हमें फीड फॉडर खिलाने से आता है, लेकिन मैं ये बल्कि पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या फीड फॉडर दे दिया तो हमें दूध और मीट मिल जाएगा? लेकिन नहीं, क्योंकि हमें इसके इर्द गिर्द का पूरा वातावरण, जिसमें कैसे उसको रखा जा रहा है, उसकी हेल्थ कैसे रखी जा रही है, पानी और ये चीज़ों की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। और इन सब जरूरी चीज़ों के साथ में हम बकरी को अलग नहीं कर सकते। इसको अलग ना करने का मेरा मुद्दा यही है कि असली सूरत ये है, और इसमें बकरी के जीन्स हैं उसके अंदर, जिनको हमने उसकी अंदरूनी ताकत कहा था। अब एक असली बात आ रही है, अगर हम इन सब चीजों को करके इस एनवायरनमेंट कह दें और इसको लेके इसका हम जीन्स कह दें, तो एक बड़ी प्यारी सी हमारे पास डिजाइन सामने ये आ जाता है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है हम लोग कि ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट है और ये हमारे इसके जीन है। और अक्सर कहा जाता है ये दोनों मिलते हैं तो हमारी प्रोडक्शन होती है। हम चाहे फिनोटाइप प्लस फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट कहें, और असली मुद्दा इसी पे आ गया। ये दो चीजें मिली और हमारी प्रोडक्शन की बात बनी। अब जरा सा ये देखते हैं कि क्या हम इसको सिर्फ प्लस कहेंगे, ये सोच विचार का विषय है कि क्या दोनों जोड़ दें तो काम चलता है, या हम ये काम और कर लें, ई को इधर रखें और जी को हम इधर रखें। इसका एक रीजन है, जी मीन्स जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जिसका मतलब है उसकी अगली जनरेशन में भी हमें फायदा मिलेगा।
इसलिए इसी बात को यूं कह दें थोड़ा बेहतर है कि जीनोटाइप और साथ में एनवायरनमेंट मिलके हमें प्रोडक्शन फिनोटाइप मिलता है। अब एक जो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का असर है उससे उनका दूध जो आ रहा है हमारे पास, मेरे पास ये हर्ड है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। 100 मेरे पास बकरियां हैं जिनका दूध औसतन 2.5 किलो है, 2.5 लीटर है। अब प्रश्न आने वाले हैं इसके बारे में कि हम सिलेक्शन क्यों करें। 2.5 लीटर वाले को अगर हम दूध के हिसाब से अच्छी बकरियों को ऊंची जगह रख दें और कम बकरियों को हम, ये सिर्फ कागज के ऊपर कर रहे हैं, अगर हम इनकी रैंकिंग कर दें तो अच्छी बकरियां और कम अच्छी और कम अच्छी और कम, अगर ये 2.5 लीटर थे तो हमारे पास जरूर 1-2 लीटर वाली भी होंगी हमारे पास बकरियां, और बहुत कम 4-5 लीटर वाली भी होंगी। असली बात यहाँ आती है, अगर इन 4-5 लीटर दूध वाली बकरियों को ही हम चुन करके इनसे अगली जनरेशन लेते हैं, ये प्रेजेंट जनरेशन है और हमारी अगली जनरेशन आएगी, सिर्फ इन्हीं से लें, बाकियों से ना लें, तो हमारी अगली जनरेशन ठीक है एवरेज 4-5 लीटर ना देगी, शायद 3-4 लीटर देगी, लेकिन शर्तिया बात है ये 2.5 लीटर से बेहतर होगी। इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिर्फ इन्हीं बकरियों को चुना, यानी कि हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन असल में यही कहानी है, हमने इनको सिलेक्ट करके इन्हीं की हमने प्रोजेनिली मेमने हमने सिर्फ उन्हीं बकरियों से लिए जो अच्छा दूध देती हैं, क्योंकि हमें दूध की पैदावार बढ़ानी है। भाई और बहनों, सिंपल सी बात, हमें सिलेक्शन करने के लिए, ये सब करने के लिए कोई लंबी चौड़ी रोबोटिक साइंस या कोई लंबी चौड़ा काम नहीं करना है। लगभग 80% सिलेक्शन का काम हम आराम से अपने खेत खलिहान अपने फ्लॉक के साथ कर सकते हैं। आप सिर्फ अच्छी बकरियों को चुन के, और जो नहीं है अच्छी उनको निकालिए, उनको आप रिप्रोडक्शन में मत लाइए, उनको कलिंग जो भी शब्द हैं, लेकिन सिलेक्ट करना और उनको हटाना। और बकरियों में तो ये कहानी ठीक हो गई। अगली बात देखें हम बक्स में, बकरों में हमें असल में बहुत कम बकरे चाहिए होंगे अगर हम इनको ऐसे तरीके से उपयोग में लाएं ताकि जैसे AI है हमारे पास, उस तरीके से बहुत ही कम बकरों, यानी कि हम अपने सारे बकरों को एक रैंकिंग में रख देंगे, उनकी माँ ने कितना दूध दिया, उनका स्वास्थ्य कैसे है, तो हमें इतने कम बकरे चाहिए कि ये सबसे उम्दा किस्म के बकरे होंगे। कम अच्छे वाले बकरे छोड़ दिए और भी कम अच्छे वाले छोड़ दिए, और ये जो ने इनको हमने छोड़ दिया, खस्सी कर दिया, तो हमारा सुधार इनसे चलने वाला। जैसे हमने इनसे देखा कि हमारा 2.5 लीटर से हमारा 4 लीटर पे पहुंच जाता है, इनसे हमारा 2.5 लीटर से 5 लीटर की तक भी जा सकता है और ज्यादा संख्या में जा सकता है। ये देखिए सुधार किया हुआ जिनमें आई होप ऑडिबल टॉल आशीष, साउंड एंड एवरीथिंग ओके? ठीक है डॉक्टर बोले। थैंक यू आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म इट। ये एक सुधरा हुआ, लेकिन साथ में देखिए अब आप यहाँ पर हर एक किस्म की बकरी दिख रही है हमें। यहाँ जरूरत है कि सिलेक्शन की जाए। ये जिस भी इलाका में है, ये कहीं गांव की फोटो है, जिस भी इलाका में है, इस इलाका की कौन सी बकरी यहाँ पे ज्यादा होती है, उस बकरी को यहाँ पे अगर चुन करके उसी किस्म की बनाई जाए तो हमारा हर्ड अगर एक किस्म का होता है, क्योंकि इस इलाका में ये बकरी ज्यादा प्रॉपर है, तो ये सुधर जाएगी। और हमारा देखिए ये भी गांव का ही, गुजरात में कहामी बकरी सुरेंद्र नगर और इलाकों में, तो ये गांव की ही पृष्ठभूमि में इस तरह की हमारे पास सुधरी हुई, क्योंकि इन लोगों ने इसमें मेहनत कर करके इनको चुन चुन के ये चुनाव किया गया है। यही रीजन है कि सिलेक्शन करने से हमें फायदा होगा। इन दोनों में हम कंपेयर कर पा रहे हैं भाई और बहनों। हमने इस कहानी को देखा जिसको हमने यहाँ पकड़ा, लेकिन अब ध्यान से ये देखने वाली बात है, जो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट है, यानी कि जो जीन्स हैं उस बकरी में, वो जो उसका एनवायरनमेंट, जो हमने खान पान दिया, उसका रहन सहन दिया, स्वास्थ्य की दिया,
इन दोनों में सिर्फ क्या हम ये प्लस साइन रखते हैं, यानी कि ये दो और बकरी से हमें प्रोडक्शन मिलेगी? इसका उत्तर है नहीं। असल में जीन एक नहीं होती, बहुत सारी जीन्स होती हैं। उधर से एनवायरनमेंट भी, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बल्कि ह्यूमिडिटी भी अपने आप में, पोल्यूशन भी अपने आप में, ये सारे इसके घटक हैं। और इनका जोड़ सिर्फ ऐड करना नहीं, कभी कभार माइनस भी होते हैं। हो सकता है ये एनवायरनमेंट इस जीन को नुकसान भी कर दे, ऐसा भी हो जाता है। या किसी तरह के भी मैथमेटिकल चल सकते हैं इसमें। ऐसे में क्या करें? ऐसे में बहुत सिंपल बात है, तरीका ये निकाला गया कि जीनोटाइप भी चाहिए हमें, एनवायरनमेंट भी चाहिए, और हमें एक नई चीज आती है इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन आ गई, इसको जोड़ या कम जो भी हुआ, इसका असर देखते हैं। अब इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि उस इलाका में जीनोटाइप का असर, एनवायरनमेंट का असर फिर जीनोटाइप पे, और ये कहानी से उस इलाका में एक ब्रीड तैयार हो जाती है। किसी भी इलाका की अपनी ब्रीड बनती है जिसमें ये वाला असर पॉजिटिव होता है। ये वाला असर देखिए, जीनोटाइप, अगर बकरी हमारी अच्छी है, हम खान पान अच्छा देंगे, और ये वाला असर उसके लोकल ब्रीड होने से जो हमें मिलेगा, तो ये सारा पॉजिटिव ही चलेगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। अगर हमने ब्रीड के एनिमल नहीं उपयोग में लाए तो ये चीज ज्यादा नेगेटिव हो जाने से हमारी प्रोडक्शन में कमी रहती है। और आगे चल के हम देखते हैं अपनी कुछ चुनी हुई बकरियां, उनकी ब्रीड्स। जमुनापरी आपके सामने है, बीटल हम आप सभी जानते हैं पंजाब गुरदासपुर इलाका में, बरबरी हमारे उत्तर प्रदेश की, चांगथंगी हमारी तिब्बत और हमारे सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों की है, संगमनेरी महाराष्ट्र की ब्रीड। इन सभी ब्रीड में ये देखने वाली बात है कि ज्यों ज्यों ये ब्रीड्स तैयार हुई, त्यों त्यों इनकी विशेष बातें भी अच्छी बनती चली गई। कुछ तो अच्छा दूध देने वाली हैं, जखराना से 5 लीटर इवन 6 लीटर तक दूध लिया गया है। ऐसे ही बीटल से दूध भी और मीट की तरह से भी। चेगू चांगथागी हमें पश्मीना तक दे देती हैं। गैरोल हम आप सभी जानते हैं हाई फेकंडिटी के लिए, इसके बहुत बच्चे होते हैं, 4-4, 5-5, और ये सारी क्वालिटीज आती चली जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, हमारे गांव में बकरियों की स्थिति अगर ये है तो कुछ कमी तो है। यहाँ पे हर किस्म की बकरी होना एक कोई अच्छी बात नहीं। ये खंडवा मध्य प्रदेश का जो हमारे पास आज से 2 साल 3 साल पहले का वहाँ पे जाने का, वहाँ की जो लोकल ब्रीड है बेरारी, उसके ऊपर बेरारी हमें 1-2 नजर आ रही हैं इधर, लेकिन साथ में कभी कहीं से ले आए, कभी सिरोही थोड़ी ले आए, कभी कोई और ले आए, तो ये बहाना। इस कहानी में सुधार तभी हो सकता है अगर हम सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करते वक्त अगर हम देखेंगे कि इलाका की जो अपनी ब्रीड है, जैसे ये उदाहरण है हमारे पास हिमाचल के पालमपुर जिला कांगड़ा की ये गद्दी ब्रीड, ये बहुत ज्यादा उम्दा नहीं, कहीं कहीं हमें थोड़े ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि उन लोगों की मेहनत से इसमें ज्यादातर एक किस्म की है। थोड़ा और सुधारा भी जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ काबिले तारीफ ये कहानी गोट गुजरात की, तो इसलिए हम असल में इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें गोट्स में सिलेक्शन करने की जरूरत है, और असल में जिस स्थान की जो नस्ल है उस स्थान की वही। आज भारत में लगभग 34 नस्लें हैं, और हर स्टेट में तो ना सही लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अपनी अपनी नस्ल है जिसका उपयोग होना हमें फायदे वाली बात करने वाला है और देखने वाली बात है। कहना ये चाहिए, वी ऑलवेज नीड सिलेक्शन ऑफ गोट्स, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा और हमारी लिवलीहुड्स उसमें। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इन शब्दों के साथ। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन। मैंने ये कहना चाहा कि भाई सिलेक्शन करना जरूरी है, उसका बेसिक कारण क्या है, उससे हमें फायदे क्या मिलने वाले हैं, और स्थानीय नस्ल की बकरी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी चीजें 3 मिल रही हैं, उसका जेनेटिक, उसका एनवायरनमेंट आप दे रहे हो,
और उसका जो जेनेटिक एनवायरनमेंट के साथ में जो और चीज आ रही है जिसे हमने इंटरेक्शन कहा, वो मैक्सिमम फायदा उस स्थान की बकरी में होता है। इसलिए पूरा फायदा लेने के लिए अपने लोकल ब्रीड का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स आशीष, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग पार्टिसिपेंट्स हियर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इतनी सरलता से समझाने के लिए। कैसे प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। जेनेटिक्स जो कि लॉन्ग टर्म है, एनवायरनमेंट जो कि अभी करेंटली आसपास अवेलेबल है, और कैसे इसके इंटरेक्शन से एक ब्रीड डेवलप होती है जो उस एरिया के हिसाब से सूटेबल होती है। और इन सब में ध्यान रखते हुए कैसे हम सिलेक्शन को इम्पोर्टेंस दें इंसेमिनेशन करते वक्त, और बक जिनसे हम सीमन प्रोड्यूस करें। थैंक यू सर। थैंक यू। दो प्रश्न आए हैं, अगर आप कहो तो मैं अभी भी कनेक्टेड हैं बोल देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक प्रश्न ये आया है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ गोट फार्मिंग, और मैं किस नस्ल से शुरू करूँ। इसका उत्तर मैंने थोड़ा सा दिया है। आप जिस इलाका में हैं, सबसे पहले उस इलाका को देखिए, उस इलाका की अपनी ब्रीड ही आपको उपयोग में लानी चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है तो जरूर आपके इर्द गिर्द थोड़ा सा दूर चले जाइए, 30, 40, 50 मील तक जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई अच्छी नस्ल की ब्रीड मिलती है तो उसे ले सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आपके इलाका में अगर कोई नस्ल नहीं भी है तो जरूर आपके इलाका की जो भी बकरी है, हो सकता है उनमें आपके इलाके की कोई एक विशेष नस्ल हो, नस्ल बन सके। अगर नहीं भी है तो, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ के आपने शुरू करना है। तो पहली बात देखिए अपने एरिया की नस्ल। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या एक बकरे को उसकी अपनी डॉटर के लिए ब्रीडिंग कर सकते हैं? उत्तर है नो, नहीं, नेवर। कभी मत करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिए। अपने रिलेशंस में किसी भी बकरे को कुछ समय के लिए यूज करना होता है। गाय में तो हम 3 साल का टाइम कहते हैं कि 3 साल तक उसकी अपनी डॉटर्स इतनी बड़ी नहीं होती, 3 साल तक उपयोग में लाइए। बकरे में हम 2 साल से अधिक टाइम नहीं देते, 2 साल से ऊपर उपयोग। एक बकरे को एक हर्ड में मत करिए, और अपनी डॉटर से नेवर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, वी कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। ऑडियंस से मेरा अनुरोध है कि समय की कमी के कारण हमें अभी पैनलिस्ट के ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़ना होगा। जो भी सवाल अनआंसर्ड रहेंगे उन्हें हम डॉक्यूमेंट करके ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। अब मैं रांगनीगर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस टॉपिक पे अपना व्यू शेयर करें। सर, पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अच्छा अवसर मिला है कुछ विचारों का आदान प्रदान करना, और हमारे सामने 2 काफ़ी अनुभवी एक्सपर्ट्स को हमने सुना। उसमें कुछ बातें उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि और जो भी मैं कह रहा हूँ, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों से जो सीखा है, और हम लोगों ने काफ़ी अभ्यास किया है, जिसे एक्सपर्ट लोग कहते हैं फार्मर पार्टिसिपेटरी रिसर्च। हालांकि जिस वक्त ये अभ्यास चालू किया उस वक्त ये टर्म बनी नहीं थी, और हमारा उद्देश्य ये था कि ये पहले समझे तो कि बकरी पालक क्या, उनकी सोच क्या है, तो क्या सोचते हैं। 1-2 बातें जो खास कहना चाहूँगा कि बकरी पालन का उद्देश्य सिर्फ दूध या मीट ही नहीं, उस गरीब परिवार के लिए, जिसे हम कहेंगे एक बहुत अच्छा रिस्क कवरेज है। और ये हमारे ध्यान में इसलिए आया कि ज़्यादातर जो हमने अभ्यास किया ऐसे सूखाग्रस्त इलाकों का ही अभ्यास ज़्यादा किया, और वहाँ देखा कि बकरी और उसके यहाँ जो बैकयार्ड पोल्ट्री, ये 2 ऐसे एसेट हैं उसके पास जिनका बहुत आसानी से उपयोग हो सकता है, और जब भी सूखा पड़ता है उसको पैसे की गरज है, वो कहता है कि ये एक ऐसा एसेट है हमारे पास जो आसानी से बिक जाता है, हमें उस वक्त की ज़रूरत
के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा ये कि हम जब भी बात कर रहे हैं अच्छे बक मिलने की, एक दिक्कत जो हमने देखी है अच्छे बक मिलने में कि अच्छे बक हमेशा जल्दी बेच दिए जाते हैं। जो भी मेल अच्छी ग्रोथ बना रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है, उसको अच्छे दाम मिलते हैं और बकरी पालक को उस वक्त ये महसूस होता है कि भाई अभी बेच दूं, पैसे मिल रहे हैं, रखूं क्यों। तो जब भी हम ब्रीडिंग प्रोग्राम लेंगे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कुछ इंसेंटिव मिले कि वो ये मेल एकदम से ना बेच दे। इसी संबंध में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाएं या सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएं, ये भी जान लें कि बकरी पालक क्या चाहते हैं, किस तरह की नस्ल चाहते हैं, उन नस्लों में जो भी स्थानिक नस्लें हैं कि किस तरह का सुधार चाहते हैं, क्या दूध बढ़ाना चाहते हैं या ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, क्या और कौन से ऐसे गुण हैं जो उन्हें फायदेमंद लगते हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो उन्हें लगता है कि अगर ये हट जाएं तो ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि कई सालों तक मैं लाइफ स्टॉक पॉलिसी के कुछ एक राज्यों में जुड़ा रहा और हर जगह ये देखने को मिला कि पशुपालक के विचार अनफॉर्चुनेटली लिए नहीं जाते और हम लोग टेक्निकल लोग ही बैठ के पॉलिसी बना लेते हैं। और करना तो उसने है और पॉलिसी उनके लिए बन रही है, तो उनके विचार जहाँ तक हो सके हम अगर लेने का प्रयास करें तो शायद उसमें से एक इसका उदाहरण दूंगा कि जब, अब काफ़ी पुरानी बात हो गई, जब ये अभ्यास कर रहा था गोट प्रोडक्शन सिस्टम का और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पश्चिम राज्यों में और पूर्व के राज्यों में भी, इवन बिहार में देखा गया कि बड़ी जोर शोर से जमुनापारी बक्स बांटे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि देखिए ये तो इनके पास बड़ी छोटी छोटी बकरियां हैं और जमुनापारी से हम बड़ी बकरी पैदा करेंगे जिससे इनको फायदा हो। और जब मैंने सवाल करना शुरू किया तो बकरी पालक तो ये कह रहे थे कि ये वहाँ ज़्यादातर ब्लैक बंगाल टाइप के बकरियां और वो पालना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा जब ये छोटी बकरी पालना उनके लिए मुश्किल है, आप जमुनापारी से उसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम वहाँ के हालात को और वहाँ के पशुपालक के विचारों को भी ध्यान में रखें जब भी बनाए, नहीं तो वेव चल जाती है। जहाँ भी रिकमेंडेशन देखें तो या तो जमुनापारी, बारबरी, बाद में वेव निकली सिरोही, सो राजस्थान से लेके और आंध्र प्रदेश तक सिरोही। तो ऐसा ना हो और मुझे खुशी हुई कि हमारे पहले दोनों स्पेशलिस्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि हम जरा अभ्यास करें कि स्थानिक ब्रीड्स कौन सी हैं। फिर एक और मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि और मुझे खुशी है डॉक्टर सिंह ने कहा कि करीब करीब 80-90% जिन्हें कहना चाहिए रिसोर्स पुअर हैं, जिनके पास बकरियां रखी हुई और जो बकरी के ऊपर निर्भर भी हैं। ऐसे हालात में एक ब्रीडिंग प्रोग्राम तो ठीक है, एआई का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम इन बकरी पालकों को ग्रुप इनके डेवलप करके ग्रुप सिस्टम का प्रयास करें। और महाराष्ट्र में ये कई जिलों में हुआ है और उसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। हो सकता है दूसरे राज्यों में भी ये बात हो जाए अगर, क्योंकि जैसे डॉक्टर सदाना ने जो 2-3 बातें बताई उसमें एक महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग सपोर्ट और मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि बकरी पालक को वाजबी दाम मिल जाए तो वो जरूर और भी उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा और इसके लिए मार्केट लिंक मार्केटिंग सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर जो इन लोगों ने मार्केटिंग सिस्टम का जब अभ्यास किया तो ये देखा कि अगर अकेला एक बकरी पालक बेचने जाता है तो उसको वाजबी दाम नहीं मिलते। वही अगर सामूहिक प्रयास किया जाए
तो खरीदने वालों के साथ आओ करके कुछ अच्छा रेट उसे मिल सकता है। और इस बारे में भी साथ ही साथ मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तरफ हम ब्रीडिंग का बात कर रहे हैं, तो उसको इन दूसरे प्रयासों का भी सपोर्ट मिलना आवश्यक है, तब जाके हमें किस तरह के नतीजे चाहते हैं मिल सकते हैं। और एक बात और थी, तो ये मेरा एक व्यक्तिगत व्यू है कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम जीरो इनपुट नहीं है। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली आदत है कहने की जीरो इनपुट सिस्टम। बकरी भी पाली जाती है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत उसको बकरी पालक को करनी पड़ती है। या तो महिला, बच्चे, पुरुष को जब भी टाइम हो पुरुष, और उसको हम इस इनपुट में गिनते नहीं हैं। और वो ज़रूरी है क्योंकि समय का भी अपना मूल्य है। और कई जगह हमने देखा कि बकरी की संख्या इस पे तय हो जाती है कि वो कितना समय दे सकते हैं, कितने बकरियों के लिए दे सकते हैं। और कई अभ्यासों में महिलाओं ने सिर्फ मना कर दिया है कि हम 5-6 से ज़्यादा नहीं पाल सकते, कितना ही हम समय दे सकते हैं। और एक इसी प्रकार जो हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसमें भी अगर बकरी पालकों को, या अगर ग्रुप बन जाए तो बहुत ही अच्छा, ग्रुप लीडर्स को इन्वॉल्व करके हम सिलेक्शन करने का प्रयास करें तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ये AI सर्विस देने वालों के बारे में भी बातें हुई, कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए। अगर उसमें महिलाएं भी शामिल हो सकें तो मेरे ख्याल से और रिजल्ट अच्छे होंगे। महिला AI वर्कर जो उनकी काफ़ी संख्या कम थी जो मुझे देखने को मिली, हो सकता है पिछले 1-2 सालों में काफ़ी आ गए हों, लेकिन जहाँ भी ये AI करती हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और कवरेज भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो प्रोड्यूसर का नीड का पर्सपेक्टिव है, कैसे पॉलिसी अगर सेंट्रलाइज्ड है, टॉप डाउन है, और प्रोड्यूसर की नीड को अगर हम ध्यान में ना रखें तो वो कैसे फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाती हैं या फेल हो जाती हैं, उस बात को हाईलाइट करते हुए तो पॉलिसी में हमें कैसे प्रोड्यूसर को इन्वॉल्व करना है, पॉलिसी बॉटम अप रहे, उनकी नीड के हिसाब से ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को हम प्रोपोगेट करें। साथ ही साथ हमें एक होलिस्टिक पॉलिसी का व्यू भी चाहिए कि सिर्फ ब्रीडिंग पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं, पर हमें कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन पे भी फोकस करना है और उस प्रोडक्शन साइकिल को प्रोपोगेट करने के लिए या उसको एक स्टिमुलस देने के लिए हमें एक रिम्यूमरेटिव मार्केट भी देना है। तो फार्मर की नीड को और एक होलिस्टिक पॉलिसी को लाने के लिए थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर मुकुल आनंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्यू शेयर करें। Thank you, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor G.K. Singh. He's our Vice Chancellor, and because he's there, he's so supportive. We are able to establish now country की one of the finest artificial insemination और semen collaboration की lab को establish कर पाए हैं. Respected Rangnekar sir, respected Sadhana sir, Sanjeev sir, and Dr. Ashish. First of all, I thank Sanjeev and Ashish for giving me this platform to speak, to present, and to put in front my views. मुझे जो कहा गया है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए कहा गया है. Although my senior colleagues, they have told each and everything regarding the breeds, regarding the selections, और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है जब हम बकरी पालन को प्रारंभ करते हैं.
नाउ अब मैं जो आपसे बात करूंगा वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करूंगा। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहला वर्ड हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द वर्ड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मींस आज के सिनेरियो में जब हम बात करते हैं तो हर चीज के लिए बोलते हैं नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। एंड देन टू वी आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन गोट। And every scientist, every expert, and even 3 of the most learned person now in country, they are saying that हमें artificial insemination करना चाहिए। This means आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस artificial word में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और उसको अगर आप जान लेंगे तो आप निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मैं अपनी ब्रीडिंग कराऊं तो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ही कराऊं। अब इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के आर्टिफिशियल में क्या छुपा हुआ है, क्यों आर्टिफिशियल के होने के बावजूद भी इसको हम अपनाने के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं? वो इसलिए अनुरोध किया जा रहा है क्योंकि अगर हम किसी भी किसान की बात करते हैं, किसी भी पशुपालक की बात करते हैं, तो मुख्यतः हम क्यों पाल रहे हैं, बकरी पालन क्यों कर रहे हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, अपनी आय में वृद्धि के लिए कर रहे हैं। और अगर हम अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो जो जानवर हम पाल रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए जिनको कि अगर उस जानवर के अंदर वो कैरेक्टर्स होंगे तो उनसे हमको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। वो कैरेक्टर आज के समय में कौन से हैं? फेकेंडिटी, फेकेंडिटी का मतलब ज्यादा बच्चे देने की क्षमता। दूसरा ग्रोथ रेट, अभी आशीष ने आपको दिखाया, बोला एआई करा लेते हैं तो 4 किलो का विनिंग टाइम पे वेट बढ़ जाता है। नॉर्मल बच्चे का 6 किलो होता है, 10 किलो जो एआई से बच्चा पैदा होता है उसका होता है। तो दिस मींस वन ऑफ द क्राइटेरिया इज ग्रोथ रेट, बॉडी ग्रोथ, क्योंकि अगर बॉडी ग्रोथ बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमको मार्केट में पैसा अच्छा मिलेगा। थर्ड थिंग इज द ग्रोइंग ट्रेंड इन इंडियन मार्केट, दैट इज गोट मिल्क। तो मुख्यतः ये 3 चीजें ऐसी हैं। इसके साथ साथ डिजीज, जब हम एआई करा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एआई अच्छी जगह से सीमन का यूज कर रहे हैं तो पहली बात तो जो संक्रमण, एक बकरा कई बकरियों के साथ जब मेटिंग करता है तो एक बकरी के संक्रमण को दूसरी बकरी के शरीर में पहुंचाने का जो उसका माध्यम है वो एआई की वजह से कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो सीमन हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ टेस्टेड सीमन, तो आपकी बकरी में वैसे ही बीमारी की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हमें नेचुरल को छोड़ना है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ बढ़ना है। अगर हम इस छोटी सी बात को कंक्लूड करें तो अगर कोई भी किसान भाई, पशुपालक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अपनाता है तो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि होगी। किस तरीके से वृद्धि होगी? उसके बकरी की बच्चे देने की दर बढ़ेगी, उसमें बीमारी कम होगी, उसके बच्चों का दूध उत्पादन ज्यादा होगा और बच्चों का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे अनुरोध करूंगा कि कृत्रिम गर्भाधान की इन विशेषताओं को जानने के बाद अगर आपको थोड़ी कठिनाई भी हो रही है तो भी कृत्रिम गर्भाधान की तरफ बढ़िए। ये आप लोगों का, किसानों का दायित्व है। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करने वालों का और स्ट्रॉ जो तैयार करते हैं उनका क्या दायित्व है, क्योंकि जब आप तैयार हो गए, आपको इनकी विशेषताएं पता लग गई, आप तैयार हो गए कि हाँ मुझे कृत्रिम गर्भाधान कराना है, तो जिनसे करा रहे हैं उनका नैतिक दायित्व है। क्या नैतिक दायित्व है? एक बनाने वाला है और दूसरा लगाने वाला है। लगाने मतलब बीज डालने वाला है। तो अगर हम बनाने वाले की बात करते हैं तो बनाने वाले में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्ट्रॉ बना रहा है वो इस प्रकार की स्ट्रॉ बनाए जिसमें कि मास मोटिलिटी, लाइफ परसेंटेज, प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी बहुत हाई हो। इसका मतलब जो शुक्राणु उस स्ट्रॉ के अंदर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में जीवित हों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बकरी का कंसीव करने की टेंडेंसी बढ़ जाए। दूसरी चीज, हम जो आदमी, जो मैन्युफैक्चरर है उसको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जो किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जो एआई करा रहा है वो इस विश्वास से करा रहा है कि मेरी आगे की प्रोजनी अच्छी होगी, जैसे सदाना सर ने बताया, जीके सिंह सर ने बताया। और अगर हमारी प्रोजेनी को हमको अच्छा बनाना है तो मैन्युफैक्चरर का ये ड्यूटी है कि उसके पास जो बकरे होने चाहिए दैट शुड बी ऑफ बेस्ट जेनेटिक्स, एंड इफ पॉसिबल
तो वो उनकी जेनेटिक स्टडी भी करके रखे कि किस बकरे के अंदर कौन से कैरेक्टर ज्यादा हैं, या कौन सा ऐसा बकरा है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर जो कि किसान को फायदा दे सकते हैं सम्मिलित हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसानों के लिए एक अच्छा सीमन बैंक, एक अच्छा सीमन उपलब्ध करा सकते हैं, और सही मायने में जो हमारी सोच है, जो जिनके ऊपर किसान विश्वास करता है, वो अपना दायित्व ढंग से निभा सकते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं एआई वर्कर्स की, तो एआई वर्कर्स की क्यों ड्यूटी जरूरी है? क्योंकि आप जानते हो कि हम लाइव सेल से डील कर रहे हैं, हमने उसको -196 पे रखा हुआ है। अब 196 से पहले हमको उसकी मेटाबॉलिक रिट्रीवल कराना है, और इस तरीके से स्पर्म को हिमकृत फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, जिससे कम से कम स्पर्म मरे। तो ये काम किसका है? ये एक एआई वर्कर का काम है। एआई वर्कर को किस चीज का ध्यान रखना है कि जब उसे अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चरर द्वारा स्ट्रॉ बना के दिया जा रहा है, तो उसके प्रयोग से पूर्व जिन चीजों का ध्यान रखना है उनका ध्यान रखा जाए, और करते समय ध्यान रखा जाए। पूर्व में क्या ध्यान रखना है कि जब आप बल्क सप्लायर से स्ट्रॉ ले रहे हो तो कभी भी उसकी कोल्ड चेन नहीं टूटनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप अपने बल्क जो आपके पास स्ट्रॉ हिमकृत फॉर्म में रखा हुआ है, क्रायो प्रिजर्व फॉर्म में रखा हुआ है, जब आप उसको निकाल रहे हो, जिस समय आप निकाल रहे हो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है कि आपको 30 से 35 सेकंड के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे उस स्ट्रॉ को रखना है। तो आप कभी ऐसा मत करिए कि इस प्रोटोकॉल को मत पूरा कीजिए। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जो आपने सीखा है, चाहे गोट ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे विश्वविद्यालय के माध्यम से, चाहे कहीं और परीक्षण लेके, कि सीमन को किस जगह पर डिपॉजिट करना है। कभी आप ऐसा ना करें कि आप सीमन को प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं कर रहे। यदि आपको ऐसा लगता है किसी भी एआई इंसेमिनेटर को कि आप सीमन को सही जगह डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, ऑस को अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आपको कोई कठिनाई हो रही है, तो जहां से जिस भी संस्थान से आपने सीखा है, मुझे लगता है अगर कोई भी संस्थान आपको सिखाता है तो वो इसके लिए सदैव तैयार रहेगा कि आपको फील्ड में कार्य करते में कभी भी कोई समस्या आए तो वो आपको मदद कर सके और उनको खुशी होगी। जहां तक गोट ट्रस्ट और मथुरा विश्वविद्यालय की बात है, मैं इन दोनों लोगों के बिहाफ पे कह सकता हूं कि हम हर इंसेमिनेटर को 24/7 अपने असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं, जिससे कंसेप्शन रेट बढ़िया से बढ़िया हो सके। समय का अभाव है, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा इलोबरेट करके नहीं डिस्कस करूंगा, बट मैं अपने सेकंड पोर्शन को भी कंसाइज करूंगा कि हमारे पास अगर हम सीमन इंसेमिनेशन की, एक पक्ष हो गया हमारा किसान और दूसरा हो गया प्रोडक्शन और इंसेमिनेशन। प्रोडक्शन में हमको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है हमारा पोस्ट थ्रो अच्छी होनी चाहिए, बग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड बग शुड बी प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड एंड डिसीज फ्री। अब अगर हम बग की बात करते हैं, जो आज के समय में प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या आ रही है? प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्केट में जो मेरे नॉलेज में आया है कि ऐसे भी लोग हैं जो सीमन प्रोवाइड करा देते हैं बहुत सस्ते रेट में। से फॉर एग्जाम्पल दे सेल देयर सीमन 17 रुपए 20 रुपए में सीमन प्रोवाइड कराते हैं, और एक इंसेमिनेटर सोचता है मैं यार 35 रुपए 40 रुपए का सीमन क्यों खरीदूं, 17 रुपए के सीमन में भी वही होगा और 40 रुपए के सीमन में भी वही होगा। बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, ये किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की जैसे बायफ है या निमकर इंस्टीट्यूट है, दे हैव वेरी गुड पेडिग्री, वेरी गुड जेनेटिक्स, एंड इन द सिमिलर फैशन अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर वी हैव ट्राइड कि हम अपनी इस क्षेत्र में जो सबसे अच्छे बकरे हैं उनकी प्रोजेनी को लाके यहां पर डेवलप करें। तो अगर कोई भी इंसेमिनेटर, दो प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग में या स्ट्रॉ सिलेक्शन में। ये इंसेमिनेटर के लिए है बेसिकली। पहला क्या है, आपने थोड़ा सा सस्ता सोच के खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या हुआ, एक तो उसके अंदर मोटिलिटी नहीं है, कहीं कहीं तो ये भी सुना गया है कि पानी भर के स्ट्रॉ बेच दी जाती है। इंसेमिनेटर क्या सोचता है, अरे एआई इन गोट तो नई चीज है, कर दो, अगर कंसीव नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे दूसरी बकरी को कर देंगे। बट हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एक किसान के यहां 2 बार इंसेमिनेशन करने पे आपकी बकरी नहीं ठहरी, तो एक तो उसका एआई से विश्वास उठेगा ही उठेगा। जो आपको 50 रुपए 60 रुपए एक आय हो रही थी एक इंसेमिनेशन करने पे, वो तो रुकेगी ही रुकेगी।
और साथ में दूसरी समस्या क्या आएगी, वो 4 किसानों से और कहेगा कि ये एआई फालतू की चीज है, इसको मत करिए। तो गलती किसकी है? गलती किसान की नहीं है, वो एआई नहीं करा रहा, गलती हम लोगों की है, हम इंसेमिनेटर की है, हम इन प्रोडक्शन यूनिट्स की है, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। जिस किसान ने हमारे पर विश्वास करके कहा आओ मेरे घर आओ और इंसेमिनेशन करो। तो मेरा कहने का औचित्य यह है कि आप लोगों को इस चीज की पूर्णता जानकारी लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉ आ रहा है, सस्ता बेच रहा है, आप किसी भी कहिए मैं आपका स्ट्रॉ लेके चलता हूं किसी इंस्टीट्यूट में, मुझे इसकी चेकिंग करवाइए कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर अच्छी होगी तो मैं 2 नहीं 4 स्ट्रॉ लूंगा, नहीं होगी तो डेफिनेटली यू शुड रिपोर्ट कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अपने नहीं, अपने साथ वाले इंसेमिनेटर को भी बताइए, जिससे उनकी छवि भी समाज में और जो हमारे पशुपालक हैं उनके बीच में ना खराब हो। और जो हम सब लोग मिलकर इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों की, पशुपालकों की आय में बकरी के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उनके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें, वो सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमको स्ट्रॉ मार्केट में कौन सी अवेलेबल है, कौन सी लेनी है, इंसेमिनेशन कैसे करना है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इंसेमिनेटर जो गन यूज करता है वो एक बकरी में यूज करने के बाद अगर उसे जल्दी से कॉल आ जाता है और वो दूसरी बकरी पे इंसेमिनेशन करने के लिए जाता है तो ही नेवर स्टेरलाइज दैट गन। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग बकरी पालन करते हैं वो इंसेमिनेटर से कहें कि मैं अपने घर से 2 लीटर गर्म पानी करने में कोई समस्या नहीं आती, किसी के परिवार में भी आप 2 लीटर गर्म पानी करवाइए और कहिए अपनी स्ट्रॉ को पहले इस गर्म पानी में डालने के बाद ठंडा कर लीजिए, मैं इंसेमिनेशन कराने के लिए 5 मिनट रुक जाऊंगा, 10 मिनट रुक जाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक इंसेमिनेटर को खुद ध्यान रखना चाहिए, नहीं भी रखता तो आप दोनों मिलके बहुत सारी बीमारियों से अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। अभी पूर्व में आशीष ने कहा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चे अच्छे होते हैं। आई डू एडमिट इट कि बच्चे अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि जिन बकरों को रखा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन कलेक्शन के लिए, सीमन प्रोडक्शन के लिए, उनको कंपैरेटिवली गांव के बकरों से अच्छा रखा जाता है। दूसरी चीज, उनसे ब्रीडिंग नहीं कराई जाती है तो उनमें डिजीज के कंडीशन कम होती है। बट एक चीज इसके साथ और जुड़ी हुई है, वो ये है कि आज आपके बच्चे जो आप सीमन यूज कर रहे हो उससे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आज जो हम सेमिनार में बैठे हैं या जो आज मंथन कर रहे हैं या गोट ट्रस्ट दिन रात काम कर रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अच्छे बच्चों के लिए नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे बच्चों के लिए कर रहा है। वो ये चाहता है कि हर बकरी के जो आगे आने वाली नस्ल हो उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जिससे कि हर बकरी 2 बच्चे कम से कम दे। दैट इज द रीजन कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान में जैसा सर ने बताया, सदाना सर ने, कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो मल्टीपल बर्थ देती हैं, बट किसानों को क्या प्रॉब्लम आता है, 3 बच्चे देती हैं, दूध है ही नहीं। वी डू हैव ब्लैक बंगाल एट आवर फार्म, हमारे फार्म पे ब्लैक बंगाल है, 2 या 3 बच्चे जिस समय हो जाते हैं उसके पास दूध ही नहीं होता। आई वॉज डिस्कसिंग विद डॉक्टर संजीव, मैंने संजीव साहब से बोला, मैंने कहा, बोले सर डॉक्टर साहब ऐसी प्रॉब्लम, मैंने कहा आई डू फेस दिस प्रॉब्लम, और उसका समाधान क्या है? बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो बर्बरी का दूध लेता हूं 4 दिन बाद और बच्चों को पिलाता हूं और भगवान की कृपा से सारे बच्चे ठीक हैं। तो संजीव साहब ने बोला कि मैंने तो एक अपना मिल्क रिप्लेसर बनाया है बच्चों के लिए, उनको पिलाते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली दिस इज अ ब्रेकिंग पॉइंट और इसको हमको प्रोपोगेट करना है। तो मेरे कहने का मतलब है छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं। एआई इज समथिंग इफ अडॉप्टेड प्रॉपर्ली, और इसमें खाली किसान नहीं है, इसमें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इसमें बनाने वाले का, इंसेमिनेशन करने वाले का, दोनों का ज्यादा महत्व है, ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व है इन कंपैरिजन टू किसान। एंड वी शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू आवर फार्मर्स। हमें अपने पशुपालकों पे गर्व करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर विश्वास करके इस कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक को अपनी बकरियों पे प्रयोग करने दे रहे हैं। और हमको ऐसा करना चाहिए कि एक बार इंसेमिनेशन के बाद उस किसान का इतना विश्वास बढ़ जाए कि वो बार बार कहे कि मैं अपनी बकरी के अंदर अगर कुछ भी, अगर मुझे ब्रीडिंग करानी है तो वो मैं इंसेमिनेशन के थ्रू ही कराऊंगा। और मेरा जो एआई वर्कर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी गोट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा हम एआई वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम जानते हैं कि शायद वो हमसे अच्छी एआई कर लेते होंगे,
लेकिन उनको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा सीमन लेना है और कौन सा सीमन नहीं लेना है। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सारे मार्कर्स बताए जाएंगे, जिस बेसिस पे अगर उनको कहीं भी सीमन मिल रहा है वो उसको क्लासिफाई करें पहले, और उसको ये फील करें कि वो सीमन वाकई प्रयोग में लाने लायक है, उससे क्या मेरे क्षेत्र में छवि बढ़ेगी, क्या मेरा कंसेप्शन रेट बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा रिक्वेस्ट मेरा यही वर्कर से ये है कि हमेशा रिलायबल जगह से अपना सीमन क्रय कीजिए, क्योंकि अगर आप रिलायबल जगह से करेंगे आपका कंसेप्शन अच्छा होगा और किसान के यहाँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और वर्तमान समय में अच्छे सीमन से अगर आप 2 AI कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप 6 से 10 AI करना शुरू कर दो। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन ब्रीफ, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। एक रिक्वेस्ट मेरा और है कि हम सब लोग बात करते हैं और कहते हैं पुअर मेंस काउ। मेरा अपना मानना यह है कि पुअर मेंस काउ उस समय कहा जाता था जब समाज में डिविजन्स बहुत ज्यादा थे और इस पर्टिकुलर स्पीशी को बढ़ाना था, तो हमने पुअर मेंस काउ यूज किया था। व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ कि आज के समय में हम इसको यूज कर सकते हैं बैंक फॉर एवरी मैन। ठीक है, दिस कैन बी अप्रोप्रिएट वर्ड एंड आई फील लाइक वी शुड स्टार्ट यूजिंग बैंक फॉर एवरी मैन, और वी कैन यूज कष्ट निवारण किसी के लिए भी, क्योंकि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कॉमर्शियल फार्मर हो, चाहे स्मॉल फार्मर हो, अगर कोई भी बकरी को रखता है और बेच सकता है तो वो उसके लिए एक मूविंग बैंक है रेदर देन गरीबों की गाय। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम वेरी मच अटैच्ड टू गोट. So I request my seniors and all the participants not to use the word poor man cow, and we should pledge that from today itself we'll start using the bank for every man rather than poor man's cow. Thank you. Thanks a lot, sir. एक पॉइंट सर डॉक्टर मुकुल ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह बताया। एक मुद्दा छूट गया सर जो इंसेमिनेटर्स हैं सर, उनको ये जवाबदारी होनी चाहिए कि जो उन्होंने सर्विस दी है, इंसेमिनेशन किया है, ये सफल हुआ। क्योंकि सर फॉर दिस ना सर वी आर इन कोलैबोरेशन, संबंध है कि वो बकरी प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, तो इसलिए वो ये भी समझ लें इंसेमिनेटर की उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि बकरी प्रेग्नेंट हो गई। सर वी आर वर्किंग ऑन इट सर। गोट ट्रस्ट और हम यूनिवर्सिटी साथ में मिलके जो फील्ड में एआई हो रही है सर, उसके लिए वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम एंड वी आर सर्चिंग फॉर सम असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कि हम कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हमको कुछ असिस्टेंस दें जिससे हम डाटाबेस तैयार करें और ये हैबिट डलवाएं कि हम रिवर्ट उनसे जो आप बोल रहे हैं सर वही चीज कि उनसे ये देखें जाके 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है सर। वी आर गोइंग फॉर इट सर। Thank you, Dr. Mukul sir, for the detailed insight on कि क्या पब्लिक स्टिग्मा है आर्टिफिशियल को लेके और कैसे एआई के बेनिफिट जैसे किडिंग रेट, हायर बर्थ वेट और हायर वेट गेन, हायर गोट मिल्क और डिजीज स्प्रेड कंट्रोल को लेके हम कैसे एआई को फोरफ्रंट में ला सकते हैं, और क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सीमन प्रोड्यूसर है ताकि वो क्वालिटी सीमन दे सकें, और सीमन एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर जो कि एआई वर्कर्स हैं कैसे वो लॉजिस्टिक प्रोटोकॉल रखें और क्या इंसेमिनेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, जिस कहीं केसेस में जहां दूध नहीं है तो जिन बकरियों में दूध है उनका दूध इस्तेमाल करके या फिर मिल्क रिप्लेसर जैसी टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ एआई वर्कर के लिए क्या ट्रेनिंग एवेन्यूज अवेलेबल हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। थैंक यू सर। One thing I want to tell you, one thing I want to tell you that right now we have 7 breeds. जो हमारे पास सीमन है वो 7 ब्रीड्स का है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। वी हैव बर्बरी, जमनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बीटल, झकराना एंड ओस्मानाबादी, एंड द पीपल कैन कॉन्टैक्ट गोट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टू प्रोक्योर दैट सीमन इफ दे नीड, and we assure that sir what we are trying to do it because it is the order of our honorable vice chancellor कि ये टेक्निक नई यूज हो रही है फील्ड में, तो आई वांट बेस्ट output out of it. So we try to have minimum of 50% post-thaw mortality, and that is considered as excellent under the current MSP.
और साथ साथ वी हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सर कि जो फेक लोग हैं कि सीमन बना के बेच रहे हैं, इसलिए जो एमएसपी के बाद जो ग्रेडेशन होता है लैब का, वो सारे गोट की केस में भी लैब्स का ग्रेडेशन स्टार्ट करा दीजिए, जिससे कि क्लेरिफाई हो जाए कि क्वालिटी ग्रेड्स जो लैब्स हैं उनसे ही सीमन मार्केट में जाए, बजाय इसके कि कोई भी बना रहा है और उसको बेचना शुरू कर दे रहा है. बिकॉज द गुड वर्कर्स एंड गुड ट्रस्ट लाइक गोट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दे आर द रियल जिनको भुक्त भोगी हैं ये लोग, जिनको की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सर थैंक यू सर ब्रीड वैरायटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, और मैं श्योर हूँ कि और ग्रो करेगा ये. साथ तो अभी एक शुरुआत है. साथ ही साथ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग सेंटर, जिससे हम क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, इम्पैकेबल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम दे रहे हैं. सिंस हम लोग टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं संजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा क्विकली अपना एक व्यू इस पे शेयर करें. एंड आई बिलीव वी विल नॉट बी एबल टू टेक पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस. So I would request participants and the attendees that we have noted your questions and we would revert back with WhatsApp and email responses. So I would now request Sanjeev sir to provide his views. Over to you sir. WhatsApp कर दीजिए, मेल कर दीजिए अगर कोई फीडबैक और मिलता है तो. जी सर, जी मिले तो अच्छा है. बिल्कुल सर. तो ये ऑडियंस के लिए हमारा एक और इनपुट है कि अगर आप एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं फ्रॉम द पैनलिस्ट, आप वो हाईलाइट करके हमें दे सकते हैं. वी वुड रिवर्ट विद द पैनलिस्ट एंड विद आंसर रिवर्ट बैक टू यू. और एक और सवाल अगर मैं पूछ सकूं डॉक्टर मुकुल से, सर इंसेमिनेटर्स से क्या फीडबैक आपको मिला? काफी अब इंसेमिनेटर्स हैं फील्ड में. सर दे आर गुड, सर दे आर डूइंग गुड, बट जो प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली सर इंसेमिनेटर्स के साथ, इंसेमिनेटर क्योंकि ज्यादातर इंसेमिनेटर्स जो हैं दे आर यंग सर एंड दे आर वेरी मच इंथुजियास्टिक टू गो फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. बट जो एक जगह जो मुझे लगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब वो स्ट्रॉ खरीदने पे आते हैं सर, तो इफ दे गेट समथिंग चीप, ज्यादा अंतर नहीं होता, 10 रुपए का अंतर है, 8 रुपए का अंतर है, और वो जब इंसेमिनेशन करते हैं और करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम उनको ये भी बताना चाह रहे हैं आप स्ट्रॉ तो लो लेकिन उसकी क्वालिटी चेक रखो साथ में सर. एंड जो लोग अच्छा स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं सर, दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट. वी एट आवर फर्म वी आर हैविंग मोर देन 65% ऑफ कंसेप्शन रेट. एंड द पीपल आउट हियर इन मथुरा सर, दे आर कमिंग टू आवर सेंटर इवन. They are taking their goats from 15 kilometers. And sir, we are jotting down their address, phone number, and regularly asking after 1 month or 1.5 months, what is the condition. And to be very frank, sir, I can discuss you later on, but you are getting very good results. And the very good thing is कि एक विश्वास जग रहा है. जो जिनके यहाँ इस बार पहली बार हमने मथुरा में स्टार्ट किया है सर, जिनके यहाँ बच्चे हो रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं साहब हम आपके यहाँ ही कराना चाहते हैं. एंड समटाइम्स इफ आई एम बिजी इन अ मीटिंग सर, दे वेट फॉर 2.5 hours. उस धूप में खड़े रहते हैं कि हमको यही कराना है जिसका एक बच्चा आ गया, क्योंकि उनको इतना अच्छा आउटपुट मिल रहा है उससे. तो सर दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग टेक्निक, बट वी ऑल हैव टू बी टुगेदर. और एआई वर्कर्स की जहां तक बात है सर, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, मतलब दे आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग एआई. बट वही क्वेश्चन आता है सर, गोट ट्रस्ट भी हमसे बोल रहा था कि हमको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा सीमेंट के ऊपर अगर किसानों में विश्वास दिलाना है और एआई वर्कर्स को प्रमोट करना है, क्योंकि उनको जब पैसा मिलेगा तब वो एआई को आगे बढ़ाएंगे सर. और पैसा तब मिलेगा जब उनके कंसेप्शंस अच्छे होंगे. कंसेप्शंस तब अच्छे होंगे जब उनकी सीमेंट क्वालिटी अच्छी होगी. सीमेंट क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब मैन्युफैक्चरर अच्छा बनाएगा या एआई वर्कर के अंदर इतनी नॉलेज होगी कि वो जान सके कि बेकार सीमेंट और अच्छे सीमेंट में क्या डिफरेंस है. सो दिस इज कंप्लीट चेंज सर. Every person has to have, matlab he should be very much true on his part. Then only the objective will be fulfilled, sir. Sir. Thank you, Ritraj. Thank you, Dr. G.K. Singh, Dr. Rangnekar sir, Mukul ji, Dr. D.K. Sadana sir, and all those जो attendees हैं जो सुन रहे हैं. कुछ दिनें होती है जो आपके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होता है, और मैं इस समय थोड़ा सा उससे गुजर रहा हूँ, क्योंकि आज से करीब 8 साल पहले जब ये सब शुरू किया, जो हमें फील्ड से प्रॉब्लम था इसलिए हम लोग यहाँ आए, और 8 साल पहले इस कंट्री में इस पर कोई खास बात होती नहीं थी.
और क्रेडिट मैं देना चाहूँगा निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने रिसर्च लेवल पे काफ़ी काम शुरू किया था स्पेशली सीड को लेके। तो वहाँ से ये थोड़ी सी इतिहास में अगर जाए तो करीब 8 साल पहले पहली ट्रेनिंग हमने की कि एआई करेंगे, और जैसा आपने वीडियो में देखा एग योक बेक एक्सटेंडेड सीमेन से करेंगे। और ये पूरी जो हिस्ट्री रही और जिस तरह का अभी लीडरशिप मिला है, ये किसी के लिए भी, हमारे जैसे लोगों के लिए ये हम सब के लिए एक दिन है। और आज 200 लोग फेसबुक मिला के, और यहाँ पे 200 लोग हैं क्योंकि 100 ही सीट थी इसमें। तो मैं 3 चीजें सिर्फ रखना चाहूँगा जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये एआई स्ट्रेटजी है, ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है। डॉक्टर डीके सदानंद ने, मैं तो चूंकि एनडीआरआई से जानता हूँ, इतने सिंपल शब्दों में बताया आपको। ये पूरी स्ट्रेटजी है, ये एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ सीमेंट डाल देने से ये काम खत्म नहीं होता, वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके आगे जो प्रोजेनी है और प्रोजेनी का कंजर्वेशन है, जो किड्स आपने पैदा किए, अगर उसके सिलेक्शन नहीं किए और उसकी नर्सरी, बस एक टर्म में डालना चाहूँगा जो गोट ट्रस्ट के 2 स्पेशल कंपोनेंट हैं जो जहाँ भी एआई की बात हो उसके साथ आना चाहिए। एक उसमें से है पशु सखी जैसा कैडर जो मैनेजमेंट करे प्री एआई से लेके पोस्ट एआई, क्योंकि जब एआई करते हैं उसके बाद स्ट्रेस हो गया उसको, उसका खाना क्या होना चाहिए, जिसको इन्वायरमेंट कहा डॉक्टर डीके सदाना ने, डॉक्टर जीके सिंह ने कहा कि ये लोग कौन हैं जो पालते हैं। तो जब तक उनको काउंसलिंग और टेक्निकल सर्विसेज आप डोर स्टेप पे नहीं देंगे, हम लैब और बाहरी दुनिया में घूमते रहेंगे। हमारी पॉलिसी हमारी खराब नहीं है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं पूरे लाइव स्टॉक सेक्टर की बात कहूँ तो समझ की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कैडर ही नहीं है जो बातों को वहाँ तक पहुँचाए। तो गोट ट्रस्ट के मॉडल में 2 पिलर्स हैं जो डॉक्टर आशीष भी बोल रहे थे, एक है एआई वर्कर, एक है पशु सखी। तो हमें ये मिलके पॉलिसी एडवोकेसी करनी पड़ेगी, ये दोनों मिलके काम करें। एक मैनेजमेंट देखे जिसको आप एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक जीन देखे। अगर ये दोनों हमने अच्छा कर दिया तो सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो मैं सिर्फ व्यू रखना चाहूँगा, अगर आप एआई के लिए पशु सखी और वर्कर का कलेक्शन समझ पाए, जहां हम और दुभाषु कहीं न कहीं उस चीज को लेके जमीन पे जा रहे हैं कि पूरी होलिस्टिक मैनेजमेंट है। हम सिर्फ एआई नहीं कर रहे हैं, हम लाइवलीहुड हमारा अल्टीमेट गोल है। इस देश के वो गरीब लोग जो अभी कोविड में 400 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और जो डॉक्टर मुकुल आनंद ने कहा हम सबको, और एआई वर्क को भी मैं कहूँगा दिल में वो दर्द रखिए, उनसे 10-20 के लिए बेईमानी मत कीजिए। अगर उनसे बेईमानी करेंगे तो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, खुदा भी माफ नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो क्लास है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात गोट ट्रस्ट कहता है कि ब्रीडर शुड ऑल्सो बी ए मार्केटियर। अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो आप मार्केट समझो। हमारे एआई वर्कर खाली ब्रीडिंग करके सस्टेनेबिलिटी ना सोचे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगला वेबिनार हमारा पशु बाजार पे है, आप जरूर आइए और आप समझ पाओगे कि एक किड में 400 रुपया हम गारंटी देते हैं आप कमा लो। आज कमा रहे हैं लोग, उसमें हमारे ट्रेडर्स कमा रहे हैं, वो हमारे एआई वर्कर कमा सकते हैं। यहाँ पे बार्गेन में मत जाइए। तो जो किसान को समझाना है, जो आपकी सर्विसेज है उसका फी लीजिए, बट एक्सप्लॉइटेशन मत कीजिए। जो सीमेंट की क्वालिटी है उसको दोनों तरह से समझिए। आपने साइंस के साथ अन्याय किया और आपने सोशल साइंस के साथ भी अन्याय किया, क्योंकि उनको ठगने की कोशिश की जो उतने जानकार नहीं है। तो ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रहा गोट ट्रस्ट के मॉडल का, तीसरा जो एक पिलर है कि अवेयरनेस पे काफी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और शायद वीडियो में ज्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाए, हम बैंक और हम व्हील्स पे चलते हैं। हमारा वीडियो ऑन व्हील्स करके एक प्रोग्राम है जिसमें हम वीडियो लेके गांव-गांव जाते हैं, किसान को दिखाते हैं और किसान के साथ सवाल जवाब करते हैं, उनको इनाम भी देते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग एक नॉलेज है, ये नॉलेज सिर्फ कॉलेज में रहने से कोई फायदा नहीं है। ये जो बेसिक नॉलेज है ये किसान को हम कहीं न कहीं कमजोर कर चुके हैं, क्योंकि हमारा चौपाल सिस्टम, हमारी और जो नॉलेज सेंटर्स थे वो टूट गए हैं। अब हमारा नॉलेज सेंटर सिर्फ कॉलेजेज ही रहते हैं। तो ये आपका एआई वर्कर का रोल है कि आप उनकी पाठशाला चलाएं, जिसे हम बकरी पालक पाठशाला कहते हैं। और जैसा मैं वीसी सर से भी कहूँगा, डॉक्टर जीके सिंह से, कि हमें कुछ इस पे रिसोर्स लाना होगा, कंट्री को मॉडल दिखाना होगा।
और ये समय है, डॉक्टर प्रदीप खलसासी भी हमारे साथ हैं जो पायनियर हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। और एक कहीं ना कहीं हम साथ के इस प्लेटफॉर्म पे, ये देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन ये 10 लोग आज हम इस पे बात कर रहे हैं। मुझे पूरा ये सपना है, हमने डॉक्टर मुकुल आनंद को भी कहा था 1 लाख AI 2021 में, और हमें कोई नहीं रोक सकता, हम डरते ही नहीं है। जब आप डरोगे तो दुनिया डराएगी। चलिए हम सड़कों पे चलते हैं। सारे AI वर्कर अपने AI गन में बोलता हूँ, और गोट्रस में AI आर्मी कहता है। युद्ध सिर्फ सीमाओं पे नहीं लड़ी जाती है, युद्ध उससे ज्यादा जरूरी है हम यहाँ लड़े, अपने गांव में लड़े, गरीबी के खिलाफ लड़े, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़े। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा ऑफ कोर्स आप सबके लीडरशिप में उन AI वर्कर को, कि आप अपने आप को छोटा धंधा मत समझिए कि मैं सिर्फ AI वर्कर हूँ। पहले तो आप अपने आप को आर्मी कहिए। और आज मैं, जैसे मुकुल जी ने वोट के लिए कहा, मैं AI के लिए कहूँगा कि हम अपने हर वर्कर को, अपने टी-शर्ट देखा होगा, आप आर्मी हो इस देश का, जो देश की तकदीर बदल सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका, और मैं चाहूँगा कि इस काम को अब हम और बड़े मिशन पे लेके जाएं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक सवाल कर सकता हूँ संजीव? हाँ जरूर जरूर। और डॉक्टर मुकुल के लिए भी, काफी बकरी पालक ऐसे होंगे कि जो AI नहीं करवा रहे, तो वो क्यों नहीं करवा रहे, ये अगर फीडबैक मिला हो, ये इसका जवाब मेल से भी दे सकते हैं। सर बेसिकली प्रॉब्लम अवेयरनेस की है सर, अवेयरनेस की है सर। उनको मालूम नहीं है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके उन जगहों पर अवेलेबल नहीं है। जैसे जीके सिंह सर ने बताया अभी कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने पूरा AI कर लिया है। फॉर एग्जांपल केरला, दे आर कवरिंग इट, बट हियर इफ वी टॉक ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इनिशियली द दिवासु हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू 50 वेटनरी ऑफिसर्स, एंड आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि इस टेक्निक को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उतारा जा सके, बिकॉज he is a veterinarian, he has a vision, he know the impact कि अगर इस टेक्निक को, बट इन द सिमिलर फैशन सर किसानों के पास, अभी मेरे पास बहुत फोन आते हैं सर, लोग बोलते हैं हम कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहते हैं, साहब बीज कहां से मिलेगा, बट वी डोंट हैव इट। सो बेसिकली सर ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सिस्टम को डिसीजन लेना पड़ेगा कि चाहे एनजीओस की हेल्प को फंड करें, चाहे अपने हॉस्पिटल्स पे AI स्ट्रॉज अवेलेबल कराएं, लेकिन किसानों का जागरूकता और अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉ, दीज आर द टू थिंग्स सर। सर 1970s में सर आप लोगों के समय में जब AI इन गोट, AI इन कैटल एंड बफलो स्टार्ट हुआ था, तब भी आप लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ किसानों को समझाने के लिए कि AI कराने के क्या फायदे हैं, और आज लोग डेस्परेट हैं। नहीं, उसी अनुभव के आधार पे मैंने ये सवाल उठाया, क्योंकि इट इज saying sir, just 2 points sir, unavailability of semen and lack of awareness, simple sir. संजीव सर आपका इस पे व्यू सर? जो किसान के पास अभी तो 3 लेवल पे प्रॉब्लम है अवेयरनेस, अभी तो एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम है। किसान की गलती कहाँ है? जब सरकार नहीं सोच रही है तो किसान कैसे सोचेगी? और शायद हमें उनके साथ ये बात करनी होगी। जब AI की वोट में बात आती है तो बहुत सारे बिना कोई रीजन तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन चर्चाएं सिर्फ रह जाती हैं। और सेकेंडली मेरा मानना है कि कि हमारे देश में जो गोट फार्मर हैं उनकी जो मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी है या कंडीशन है, वो सप्लीमेंट्री इनकम की तरफ देख रहा है। कॉमर्शियल फार्मिंग की बात तो हो रही है, बट उसकी तैयारी किसी के पास नहीं है। इंक्लूडिंग मैं ICAR के 2 मीटिंग में ये मुद्दा रखा कि हम में से कोई कॉमर्शियल गोट फार्मिंग करेगा इस देश में, और मैं दावे से कहता हूँ किसी का जो भी बोला, लेकिन वो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी ब्रीडिंग, फीड, जो बिजनेस लिंकेजेस हैं, इसकी तैयारी नहीं है देश। और अगर जब तक ये फीड की क्वालिटी भी, गोट की फीड की अगर बात करें तो आज गोदरेज एग्रोवेट एक कंपनी बनाती है, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट पूरे देश में नहीं है। उनके लिए जिस तरह का फीडिंग का मैनेजमेंट चाहिए, इन गोट फार्मर्स को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में। और मैं लास्ट एग्जांपल दूं, मैं गोट फार्मर से पूछ रहा था कि नेताओं के नाम बताओ देश का, शायद ये पहले लोग हैं जो 2 या 3 से ज्यादा नहीं बता पाते, जबकि आज हर आदमी 50 नेता का नाम बता देता है। तो ये मेन स्ट्रीम से बहुत हटे हुए लोग हैं, इसलिए शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
बट एआई वर्कर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मैं तो एआई आर्मी की बात करूंगा। ये आर्मी अगर हमने बिल्ड की, और पशु सखी दीदी को जैसा डॉक्टर रांगलेकर सर ने कहा था कि वही महिलाओं का एआई, मैं ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि कलमस 30 हमने डेवलप कर लिए हैं। अभी उनको और हमें नंबर बढ़ाने हैं, क्योंकि पशु सखी हमारे पास 15,000 है। जिस दिन हमारी पार्टनरशिप जब आगे बढ़ेगी तो हम वेट कर रहे हैं कि 15,000 एआई वर्कर हमें शायद 3 महीने लगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन डॉक्टर जीके सिंह सर आपका है, बस आप अब हमारे शायद समय आ चुका है कि हम अब बड़ा सोचें। कहीं सोचने में हम सबकी कमजोरी रही है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Mukul sir, for summarizing. Thank you, संजीव सर, कि AI एक एक्टिविटी नहीं है, AI एक स्ट्रैटेजी है, और इसमें हम कैसे एनवायरनमेंट को, AI वर्कर को और अवेयरनेस को, तीनों भाग को देख रहे हैं। AI वर्कर सिर्फ एक एक्सटेंशन मैकेनिज्म नहीं है, वो इम्प्रूव ब्रीड के लिए मार्केट डेवलपमेंट एजेंट भी हो सकते हैं। उसी तरह जो पशु सखी हैं वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और साथ ही साथ अवेयरनेस को लेके गांव में काम कर सकते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, और शायद हम एक बड़ा अगर सपना लेके चलेंगे तो फिर एनर्जी मेरे ख्याल में अपने आप ही इसके प्रति आएगी। So I thank all the panelists. We are running short of, we have overshooted actually half an hour. So we would not be able to take questions from the audience as of now. We have registered them all, and we request the attendees to specify their questions. Even if they wish to ask any panelists, they can specify that. We'll reach out to the panelists and revert back. With this, I thank you all. International Institute of Goat Management shares its gratitude towards our panelists, community stakeholders, and audience. We hope the webinar was stimulating and would drive action towards goat breeding management and generate pro-poor profitable enterprises. Thank you all. Please stay tuned for our upcoming series of webinar. Next among them, livestock trading in post-COVID era, experiences of online portal Pasu Bazaar. It will be live next Friday, 5th June, 4 p.m. to 5:30 p.m. We hope to see you again. Thank you all for your participation and this stimulating discussion. Thank you. Thank you. Thanks, everybody. I enjoyed it. Thank you, sir. Thank you. Thanks, everybody. Thank you, sir. Thank you.